everybody who is present out here, I would just ask a basic question and want to know what are your opinions regarding this. So tell me, guys, what do you think is the basic difference between a business and a startup? Anyone? You can just unmute yourself and give the answer. Can I say? Yeah, sure, sure, sure. I think for me the basic difference between a business is that business can be from second generation and third generation, and it could be a first generation business. But in case of business, its growth and its potential can be in a limited frame of circle. But in case of startup, it could have great potential. It could have been done in new ideas and new sectors where business maybe can't go to that extent. And in startup, it's definitely for the first generation entrepreneurs. So I think that are the basic differences. In business, it's a more of a stable growth with a stable income, but in startup, you can have 2x or 3x of a growth of then a business, but it has some repercussion of risk also. Okay, that was a good answer. Any more answers? A business a business has to be profitable. A startup may not, at that point may not be. It may run on fundings. Okay, that also is a good difference. Any more answers? A startup is essentially Startup. a business which basically is an we can say it is an idea which is there to solve a problem. The main concept of a startup is and I think is to find a problem and get a solution out of that problem. Yes, you are absolutely right. This is a very proper definition of startup. Acha, any more answers? Does anyone want to try something? I would like to go with the same answer as said by him, that a problem that the society is facing and we are just developing a solution for it. Okay, okay. So I see another guy is raising the hand. Do you want to say something, buddy? You can unmute yourself and speak. Okay. Uh, So, uh, yeah, sure. okay. Sure, sure. Go on. Actually, I think that I have a plan to for a fintech startup actually for Hmm. the whole price. So basically, I think that the startup is the first thing is that the to calculate the risk, then make some strategies there, and also make some plans that implement in the real world, not just in the theoretical. Like if I have implement a plan, how it could be beneficial for the society. If I make a website or app or something on the fintech domain, or so how it could be benefited for beneficial for the other peoples, and how it will be contributed to the society basically. So calculated the risk, rise the fund, and make a implementation that impact long lasting, I think. Okay, that was all good answers from every one of you. And The I very would say that keyword is that it should be sustainable in the long future. Yes, for yes, the that's long term. also Yes. yes, that is also a good point. And I am very impressed that everybody has touched some portions of the basic difference in between the business and a startup. Sorry. So I would say that yes, the main propaganda of a startup and a business is that in a startup we look forward in solving a problem, in a not only a problem but a problem that a society is facing. We just not going out and basically doing just something that can earn us revenue, but also try to solve a problem. And in case of business, this may not be like a valid point. They can obviously have a business where they are also basically solving a problem. But whenever a business is trying to solve a problem, and the second most important difference between a business and a startup is when you are doing a startup, you are doing something in a new way. Okay? There is a new business model to a basically particular solution, right? Whereas in business, they are already a proven model, right? So I can give you an example. Suppose basically uh, you have a product, you have a cement that can really be far more long lasting in the winters, and basically they can really increase the durability of a building, right? And basically keeping this as your main product, you want to start a business of promoters. You want to be a basically builder, right? So that can be called a startup, right?
But a typical promoter, what does he do? He is not basically optimizing the thing or the product which he is using. He's using that typical cement, typical bricks, and everything. So there is no innovativeness, there is no creativity in it. So whenever you are solving a problem with a creative and innovative approach, which is new, that is where I can say a business is different from a startup. So that is the basic difference. And one more thing is that every startup is a business, but every business is not a startup. So that's another point to be kept in mind. Okay, keeping all these points in our mind, let's start the let's start with the business plan of the PPT. Let's start it with it. So the first and the foremost thing is that what is a business plan and why do we need this business plan? We will come to all these questions, but the first question that goes is what is a business plan? So a business plan is a formal document where you basically put forward all your goals of a business, the strategy which you will be implying to achieve your goals, the overall blueprint of how your business is going to run. And obviously, you are not here to do some social service. So, how will you be generating the revenues? What will the roadmap of your company in the upcoming years? How will your company grow? And everything all concised in a particular document, which not only will be helping you to overall picturize your business model, but also when you will be going forward for pitching, for raising funds, the investors would also understand about your business in a proper and in a definite manner. So that is what a business plan is. For the next slide, I would ask Harshankit and Debabrata to continue. Yeah, so hello everyone. I am Devabrata, currently the co-head of startup wing of IIC. So I want to ask you a question. Have anyone experienced any kind of innovation in any startup prior? Do you have any kind of experience with startups? Language is not a barrier. If you want to continue in Hindi also, no problem. किसी ने यहाँ पे कोई स्टार्टअप में कुछ एक्सपीरियंस किया है? And there one more point is that this is not a officially English type of conversation. So if you are free to basically speak in Hindi, Bengali, in your regional language, if you want to answer in your regional language, you can answer in those languages also. It is not definite Yeah, that you need to speak in English. we are trying to keep this session interactive, so please cooperate. Okay. हाँ, तो मैं पूछ रहा था किसी ने यहाँ पे कोई बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान किया है या फिर कुछ एक्सपीरियंस हो पहले से? I have a plan actually. Okay. Just I have a plan on the domain of fintech. So, Okay. and my plan is to promote the finance industry to make a e-learning provider to the people. मतलब मतलब क्या है ना, in this Gen Z generation बहुत सारे लोग फाइनेंस इंडस्ट्री के बारे में उतना अवेयर नहीं है कि what is finance, what is the financial industry, how it what they do, what is the definitions, financial literacy basically. So I think I just have a plan that to make a website or app to, if that is to provide the e-learning provider for the students. हाँ, yeah, very innovative. Yeah, financial knowledge is very important in these days. इन्वेस्टिंग वगैरह बहुत पहले से स्टार्ट करना चाहिए लोगों को. सो फाइनेंशियल नॉलेज हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो और कोई? ठीक है. सो suppose you have given me an example of a financial financial education providing startup. So what if you wake up one fine day and decide that you are going to launch it in a website without any plan, without any budget, without anything? Financial planning के बिना ये चलेगा? नहीं चलेगा, right? Like कल तुम एक रेस्टोरेंट खोल दो, no menu, no chef, no budget plan, just a signboard maybe saying food. Sounds chaotic, right? So वो चलने नहीं वाला है. That's what actually is the role of a business plan. Without a business plan, you cannot sustain your startup.
So why do we actually need a business plan? So first of all comes clear direction. So let us take example of some Indian startups actually. Everyone has heard of Flipkart, right? Can you tell me the name of the founders of Flipkart? Someone? Hello? Am I audible? Yes, yes. किसी को मालूम है किसने स्टार्ट किया था फ्लिपकार्ट? कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? कैसे स्टार्ट हुआ था? I know it's a Bangalore-based startup. या IIT Delhi alumni. यस 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 एग्जैक्टली, दो लोग थे, सचिन एंड बीनी बंसल ने स्टार्ट किया था. सो उन लोगों ने जब स्टार्ट किया तो प्रॉपर उनके पास प्लान था, बजट था, फाइनेंसिंग था, फंडिंग था. तो विदाउट एनी बिजनेस प्लान दे वुड हैव जस्ट बी ए नॉर्मल कमर्शियल कंपनी selling something like potato peelers today, something. So it is very important to have a business plan. Now you know Flipkart is a household name now, and almost golden son actually after the acquisition. So it is very important to have a business plan. Number two is like understanding your market. Like if you think you have an idea and you think it's unique, actually in India with a population of 140 billion, it is 1.4 billion. It's impossible that you will have a unique idea. Somewhere in India, someone has already thought of it and maybe they have already executed it, but it not be may not be in the limelight. So business actually helps you understand your competition and target market. Like Zomato, initially it was a restaurant menu aggregator, right? They knew India loved food and more than anything, and also they love discounts. So they aggregated it in a single app, and also delivery time was very low. So then comes financial discipline. You know, इंडिया में बहुत जुगाड़ होता है, राइट? सो बट जुगाड़ से फंडिंग नहीं मिलने वाला. फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोजेक्शन, स्ट्रेटेजीज होना चाहिए. सो सबको फिजिक्स वाला के बारे में पता ही होगा. जब उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड के लिए जब फंडिंग रेस किया था तो उनके पास प्रॉपर फाइनेंशियल एक प्रोजेक्ट रेडी था जो सीए से करवाया था उन्होंने. सो वही है. फिर है रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट इट इज लाइक तुमको, अगर तुम फाइनेंशियल प्रोजेक्शन करोगे, तुम बी प्लान बनाओगे पहले से, तो यू विल नो जे कहाँ पे रिस्क होना है, कहाँ पे कोई रिस्क है. सो दैट्स इट. सो इसके बाद हरिशंकर प्रगति है. Thanks, Debabrata. So hello guys, myself Ankit Raj. I am the co-head of Startup Wing. So let's go with the next slide. So things needed to make a business plan. अब लोगों को बहुत सारा चीज होगा कि भाई कैसे अब बिजनेस प्लान बनाए. तो ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ खास नहीं है. जस्ट फ्यू पॉइंट्स आर देयर कि लाइक तुम्हारे पास एक अच्छा सा कंसाइज ओवरव्यू होना चाहिए तुम्हारा आइडिया का. दैट वी आर गोइंग टू से एग्जीक्यूटिव समरी. ठीक है. दूसरा, हम लोग के पास विजन और मिशन होना चाहिए जो बेसिकली इज नीडेड फॉर एनी स्टार्टअप, कि हम लोग क्या मिशन के मतलब मिशन के साथ हम लोग सोच के वो स्टार्टअप को स्टार्ट करने का चाहते हैं, और हम लोग का विजन कहाँ है, मतलब लाइक स्टार्टअप को वो एक्स पोजीशन से जेड पोजीशन जो लास्ट मतलब जो फ्यूचर पोजीशन है उस पे कैसे लाएं. तो ये सब तुम्हारा बिजनेस डिस्क्रिप्शन हो गया. मार्केट रिसर्च, ये बेसिकली हो गया कि तुम्हारा जो टारगेट ऑडियंस एंड ऑल, इंडस्ट्री ट्रेंड्स जो होता है वो सब के बारे में जानना, जो हम लोग को जानना चाहिए. फिर तुम्हारा प्रोडक्ट सर्विसेज हो गया, लाइक जो तुम्हारा जो एज एन स्टार्टअप यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द कस्टमर्स द सर्विसेज विच आर यू गोना प्रोवाइड. ठीक है. सो नेक्स्ट हो जाता है मार्केटिंग प्लान. सो स्ट्रैटेजीज जो तुम बनाओगे एक लाइक ब्रांडिंग प्रमोशंस के लिए. लाइक एग्जांपल तुम ले सकते हो, पीडब्ल्यू का एग्जांपल एक ले सकते हो. यू आर गोइंग टू सी मोर एड्स ऑन यूट्यूब, या देयर आर फ्यू मोर एग्जांपल्स. ठीक है. फिर नेक्स्ट हो जाता है ऑपरेशनल प्लान. ऑपरेशनल प्लान क्या हो गया कि तुम्हारा वर्क फ्लो, बेसिकली तुम्हारा वर्क फ्लो, तुम्हारा जो सर्विसेज है वो तुम लोग कैसे कर रहे हो.
Workflow can be defined with many examples, जिसमें से तुम कोई भी ले सकते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फ्लिपकार्ट, कि वो लोग का वर्कफ्लो कैसे है, कि दे आर गोइंग टू टेक द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द रिटेलर, देन दे आर गोइंग टू प्रोवाइड टू दैट कस्टमर। सो एक तरह का ये वर्कफ्लो हो गया, ये तुम देख सकते हो। फिर फाइनेंशियल प्लान्स हो गया, बजट, रेवेन्यू प्रोजेक्शंस एंड ऑल, फंडिंग्स जो नीड होता है एंड ऑल। देन दूसरा होता है टीम स्ट्रक्चर, रोल्स एंड एक्सपर्टीज जो तुम्हारी टीम के पास है, उसके अकॉर्डिंगली उनको रोल्स डिफाइन करके दे रहे हो। फिर स्वॉट एनालिसिस, व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट appendices, दैट इज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक चार्ट्स एंड रिसर्चेज जो तुम प्रोवाइड करोगे लाइक इन अ ग्राफ और सॉर्ट ऑफ। ठीक है, 1 मिनट। एनीवन इज रेजिंग हैंड्स? नो वन, ओके। एक बंदे So ने let रेस किया था, देवव्रत hmm, पाल शायद। okay. So So do you have any Devabrata, doubts? At the end of every slide, you are feel free to ask questions. Okay. जिसको कोई भी डाउट हो इन एनी वर्ड और एनी सिंगल स्लाइड, जो भी होगा तुम लोग बोल सकते हो, ठीक है? कॉज आई एम चेंजिंग दी पीपीटी स्लाइड्स, तो देख नहीं पा रहा हूँ एक बार के लिए, तो यू कैन रेज योर हैंड्स। एक भी कोई भी होगा वो बता दिया जाएगा उसका सोल्यूशन, ठीक है? सो Can you आदि explain the SWOT हाँ analysis a bit more? हाँ We are coming to ओके। it. We will be coming to it. We will be Okay. coming to it. So let's go to the next slide then. Then we have name and logo. Basically इसमें क्या है, नेम हम लोग का होना चाहिए लाइक इट इज इजी टू प्रोनाउंस, रिकॉल कोई कर पाए इजीली। लाइक फिजिक्स वाला ही तुम ले रहे हो, PW जो कंपनी हो गया, वो क्या है, इजी एक प्रोनाउंस हम लोग कर पा रहे हैं। वहीं अगर कोई हम लोग एक ऐसा डिफिकल्ट नाम कर पा रहे हैं जो प्रोनाउंस ही नहीं हो पा रहा है, रिकॉल ही नहीं कर पाएंगे, दैट्स टू डिफिकल्ट। ठीक है, फिर हो गया रेलेवेंट, रिफ्लेक्ट्स योर बिजनेस पर्पसेस, और ये यूनिकनेस होना चाहिए कि तुम्हारा नाम में कुछ यूनिक है। फिर क्या है, स्केलेबल, वर्क वेल एज योर बिजनेस ग्रो, स्ट्रेच फ्रेंडली, इजी एंड ये। तो ये नेम के जो भी तुम नेम्स यूज करना चाहते हो स्टार्टअप्स को अपने को दिखाने के, रिप्रेजेंट करने के लिए, वो ये सब क्राइटेरियाज को अगर तुम लोग फॉलो करोगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू। ठीक है, अब डिजाइनिंग अ लोगो, मिनिमलिस्टिक होना चाहिए, प्रोफेशनल जैसा दिखना चाहिए, वर्सेटाइल होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई देख ले तो याद हो जाए। अब जैसे फ्यू एग्जांपल्स भी है मेरा पास में, दिख सकता है कि एक फ्लटर का लोगो देख सकते हो या जोमेटो का लोगो देख सकते हो। तो दीज आर वन ऑफ देयर एग्जांपल्स कि तुम नाम भी कैसा रख सकते हो, एंड इनफैक्ट तुम्हारा लोगो कितना शटल और कितना इजी टू अंडरस्टैंड या आंख पे मतलब अपीलिंग रहे बेसिकली। ठीक है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? सो पूछ सकते हो अभी इन नेम एंड लोगो। गाइस समझ में आ रहा है ना बेसिकली, क्योंकि कॉज ये सब हेलो। हाँ भैया जिनको समझ समझ में में आ आ रहा रहा है, जिनको समझ में जिनको आ रहा समझ समझ में आ रहा है तो दे कैन रेज देयर हैंड्स। जिनको समझ में आ रहा है उनको रेज करने बोलो, दे कैन रेज देयर हैंड्स और गिव अ थम्स अप, बोथ विल वर्क। देखो अभी ओके, समझ चलो। में आ जाएगा, डाउट्स होगा तो अभी सॉल्व हो जाएगा। अब हेल्प प्राइस में जाओगे, और पिच वैसे करोगे। भी और वैसे भी 3-4 स्लाइड्स होने के बाद हम लोग ऐसे हम लोग 5 मिनट का पॉज लेंगे ही तुम लोग का डाउट्स एड्रेस करने के लिए। अगर तुम लोग का डाउट्स नहीं है तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे तुम लोगों को, जिससे हम लोग को समझ में आए कि तुम लोग को समझ में आ रहा है, राइट? सो दैट्स हाउ वी आर गोना डू इट। ठीक है, इंटरेक्टिव रखेंगे हम लोग सेशन को। सो वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। वी ओके, आर गेटिंग अ गुड सो नंबर ऑफ थम्स अप। okay, so let's go to the next slide. That is problem and statement. Mainly, what is problem and statement? Identify a specific challenge of your target audience, which is they are facing. uh, देखो, ऐसे तो बोलने में तो हम लोग कोई भी बोल सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो तुम्हारा कोई भी और टारगेट ऑडियंस नहीं, बेसिकली जो भी एक पर्सन फेस कर रहा है वो हो गया तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो लेट्स गो फॉर एन एग्जांपल लाइक जोमैटो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। तो जोमैटो का हम लोग का क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट था? People often struggle to discover nearby restaurants, access menus, and order food conveniently, especially during busy schedules for late.
आवर्स। ये बहुत लोग होगा कि तुम लोग देखे भी होगे। हम्म। So, and we have another problem statement that is Flipkart. अब Flipkart में तुम देखते होगे कि limited access होता है, एक wide range of um, affordable products for people living in smaller towns and cities in India. ठीक है। सो देखो ये सब हो गया जोमेटो एंड फ्लिपकार्ट का, ये सब जो था ये सब प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स था विच दे आर गोइंग टू give a solution. So let's go for the solution statement, like what innovative solutions they have provided to their customers. So for Zomato, Zomato provides a seamless platform for discovering restaurants, viewing um, menus, reading reviews, and ordering foods online with quick delivery, connecting users with local eateries and cuisines. Then this approach transformed how people dine and order food, making Zomato household name in India. Good. Then in Flipkart, the solution which they have provided was like they have created a e-commerce platform offering vast selections of products with affordable prices, each payment options and delivery to even the most remote locations. अब ये सब तो हो गया एक और, अब मोस्ट रिलेटेबल बोल दे रहे हैं क्योंकि तुम लोग फर्स्ट ईयर से हो मेनली, एम आई राइट? मोस्टली तो सब फर्स्ट ईयर से हो गए। थम्स हेलो अप थम्स अप थम्स अप दे दो, थम्स अप दे दो, अगर फर्स्ट ईयर से हो तो थम्स अप दे दो। कोई ठीक भी है, क्वेश्चन होगा अगर तुम लोग उसको आंसर करना चाहते हो, लाइक यू आर शोइंग योर रिस्पांस, देन गिव अ थम्स अप। ओके। सो एक एग्जांपल देते हैं पीडब्ल्यू का। पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला, उसमें क्या था जो 2000, इट्स लाइक 2022 21 से 22 when they have launched their courses that were more affordable. So प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो लोग क्या था कि वो लोग को ऑनलाइन लर्निंग को सब जगह केटर करना था एक अफोर्डेबल पे। तो सोल्यूशन क्या था वो लोग का, वो लोग हर कोर्सेज का अपना फीस कम किया। ठीक है। तो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम एंड उसका जो सोल्यूशन पीडब्ल्यू प्रोवाइड किया, देयर विल बी दैट सोल्यूशन। सो तुम लोग भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को जो राइट नाउ एज पर आर बेस्ट ऑफ नॉलेज हल्ट प्राइस ने कोई भी ऐसा एज सच प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फिक्स नहीं किया है, तो यू कैन गो टू एनी एक्सटेंट कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लाके उसका एक सोल्यूशन, एक मतलब एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन तुम लोग प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, लेट्स गो। एक सेकंड, 1 मिनट। सो एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस, सो यू मे रेज योर हैंड्स। निखिल। जिन लोगों का ऑलरेडी रेज्ड है कोई कारण से, उन लोग अपना हाथ नीचे कर लो, और जिन लोगों का है अभी भी क्वेश्चन, वो लोग कीप इट रेज्ड। ठीक है, ओके, और गो। नो, नो वन हैज एनी क्वेश्चंस, सो आई एम ओके, और गो Yeah, there's one guy. से। My question was, I'll be honest, the business model Flipkart was not essentially something they just came up with, or essentially they kind of copied Amazon. So मेरा question था कि like, eh, the main idea of a startup, how much like should it be like completely organic कि like एकदम scratch से एकदम ऐसा आइडिया कि like कोई किसी ने नहीं किया है, या फिर it may have essentially like uh, kind of take a reference or like inspiration from another type of startup or business and just implement it in a different environment, or does that also work? Because यस, Flipkart is essentially something who just essentially took Amazon and made it for India. Yes, true. We can do those things too. We can give some improvements to the business models which were previously discovered by anyone else. So we can do that thing. सी आई वुड लाइक टू Anyone? ऐड ऑन हियर, आई वुड लाइक टू जस्ट ऐड ऑन हियर कि देखो, आइडियाज बहुतों का ना सेम हो सकता है। अगर तुम लोग यूपीआई पेमेंट्स का चेक करो ना, तो जब यूपीआई पेमेंट्स आया था एक साथ ना, बहुत सारे लाइक विद इन अ वेरी स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम बहुत सारे कंपनीज आ गए। पेटीएम आ गया, फोन पे आ गया, वहां से गूगल पे आ गया, भारत पे आ गया। बट सम ऑफ द अदर में ना कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स रह चुके हैं। भारत पे स्पेसिफिकली मैं अगर बोलना चाहूँ कि उनका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या था, कि वो लोग बोल रहे थे मैं हम लोग सिर्फ फोन पे यही नहीं कर, हम लोग सिर्फ यूपीआई मतलब पेमेंट्स ही नहीं करवाएंगे,
अगर बेसिकली कोई बिजनेस ओनर है, उनको अगर कोई लोन चाहिए तो मैं लोन भी उनको प्रोवाइड करूंगा। और उनका लोन पेमेंट रीपेमेंट का ना जो स्ट्रक्चर था वो भी बहुत यूनिक था। वो बोलते थे तुम्हारा डे टू डे जो ट्रांजेक्शन होगा उसमें से ही मैं तुम लोग का एक पर्टिकुलर अमाउंट काटूंगा हर एक पेमेंट से, और ऐसे ही धीरे धीरे तुम्हारा लोन रीपे होता रहेगा। तो जितना तुम्हारा यूपीआई ट्रांजेक्शन होगा वहीं से तुम्हारा बेसिकली लोन का रीपेमेंट भी होगा। तो दीज आर सम यूनिक बेसिकली आइडियाज or executions which are needed to make your company differentiate with the company which is already pre-existing with the same idea or similar idea, right? So your execution should be a bit different, जहां पे तुमको कुछ यूनिकनेस लगे। अगर Amazon और Flipkart का बात करूं तो Amazon का जो था मेनली, ठीक है, सो देवर अ फॉरेन कंपनी हु हैज केम टू इंडिया। तो उनको इंडियन कल्चर से इंडियन लोगों का जो बेसिकली चॉइस सिलेक्शन होता है ना, उसके ऊपर उतना आइडिया नहीं था इनिशियली। तो फ्लिपकार्ट वहीं पे चूज किया कि इंडियंस को बेसिकली क्या क्या चाहिए। तो अगर मैं बोलूं कि लाइक इंडियंस लोगों को बेसिकली जो सामान चाहिए और बेसिकली लाइक जैसा टाइप का सामान चाहिए, ठीक है, वैसा सामान इनिशियली अमेजन में नहीं था। और अमेजन का जो प्राइस पॉइंट था दैट वाज अ बिट हायर ऑन द हायर एंड, क्वालिटी भी थोड़ा बेहतर था। बट फ्लिपकार्ट ने क्या किया कि उन्होंने बेसिकली बजट फ्रेंडली बेसिकली सामानों को अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में ज्यादा प्रमोट किया, जिससे ना उनको बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिला ऑडियंस का। सो दैट्स द थिंग, दैट्स अ फ्यू थिंग्स व्हिच यू नीड टू लुक फॉरवर्ड। आइडिया सिमिलर हो सकता है, पर तुम्हारा एग्जीक्यूशन और तुम्हारा बेसिकली कस्टमर बेस को कैसे तुम अट्रैक्ट करोगे, दैट्स हाउ बेसिकली यू कैन मेक अ डिफरेंस, एंड दैट्स हाउ यू कैन मेक योर बिजनेस स्केलेबल एट अ scalable and sustainable for a longer future. I guess I have answered the question well enough. Orko? Yeah, sure. But I Okay, okay. think Meesho did it better than Flipkart. You know, वो सस्ता सुंदर वाला चीज। Okay, okay. हाँ सर। Abhimanyu bhaiya, हाँ I'm taking it from हाँ हाँ That's here. a personal opinion. श्योर श्योर देखो Okay, देखो, thank you, श्योर thank श्योर that you, is a श्योर। Gaurav. Orgo, that is a personal thing, but you can take example as in Snapdeal too. Snapdeal अभी bankrupt हो गया है, अब नहीं रहा, but it was more appealing why? Cause वो ज्यादा ही affordability provide कर रहा था। अब उसका पता है कि बहुत सारा there were cons, but that was the main thing. ठीक है, सम्या, do you have any doubts you can ask? हाँ, ये आई हैव डाउट दैट अभी अभिमन्यु भैया बोले कि मतलब एक आइडिया मुझे बहुत यूनिक लगा कि लोन मतलब प्रोवाइड करेंगे जब बैंक है, पर रीपेमेंट ऑप्शन डे टू बाय द डे टू डे ट्रांजेक्शन। हाँ, तो ये मतलब बहुत यूनिक आइडिया है एक्चुअली। तो एक्चुअली ये मतलब ये आइडिया अगर लोन देना है तो मतलब क्या ऐसा कुछ है कि अमाउंट फिक्स होगा कि इससे ज्यादा अमाउंट या डेडलाइन अमाउंट? I वो will answer that. वो भैया एक्चुअली I ओके ओके मैं अभी बोलचा लाइक वो कैसा कैसे कर सकता है कि अगर जब तुम पकड़ लो यूपीआई पेमेंट्स कर रहे हो तो इनिशियली एकदम स्टार्टिंग में ही तुम लोन के लिए बेसिकली रेडी नहीं हो सकते, राइट? तो वहां पे क्या करना है कि तुम बेसिकली पहला 1-2 महीना या पहला 3 महीना तुम देखोगे कि कैसा टाइप का यूपीआई का तुम्हारा ट्रांजैक्शन चल रहा है। उससे तुमको ना एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई इतना पेमेंट तो हो रहा है, कि इसका मोटा मोटी एक दिन का 1000 से 1500 रुपया का बेसिकली ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो उस हिसाब से मैं इसको इतना तक का लोन दे सकता हूँ और इतना परसेंट उसका बेसिकली पर ट्रांजैक्शन में काट भी सकता हूँ। तो इट्स ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन विच यू इनिशियली गैदर फ्रॉम द पर्सन। तुम इनिशियली उतना बेसिकली गैदर कर लिया, फिर तुमको जब पता चल गया चलो चलो इसका बेसिकली ऐसा ऐसा सीन है, फिर तू यू कैन स्ट्रक्चर द लोन बेसिकली फॉर देयर पर्सपेक्टिव। वैसे ही अगर तुम देख रहे हो कि उसका 1000 रुपया करीब ट्रांजेक्शन है, तो तुम कर सकते हो कि हाँ 1000 रुपया का ट्रांजेक्शन है, उसका मोटा मोटी 10 तो यूपीआई पेमेंट्स होता है, तो एवरेज उसका निकल रहा हर एक ट्रांजेक्शन का 100 रुपया। तो बेसिकली हर एक ट्रांजेक्शन से मैं बेसिकली 10% करके काटूंगा और उसको बेसिकली 10,000 का लोन एट अ पेमेंट में दे दूंगा। तो मेरे को हर एक पेमेंट से मेरे को 10 रुपया मिल जाएगा, तो हर दिन मेरे को 100 रुपया मिल जाएगा। तो इस हिसाब से बेसिकली 30 दिन में मेरे को बेसिकली 3,000, 30 दिन में, हाँ, हर दिन में 100 तो 30 दिन में, हाँ, हर 30 दिन में 3,000 मिल जाएगा अराउंड 3 या 4 मंथ्स का। और मेरे को अगर पकड़ लो 10,000 का लोन के ऊपर मेरे को बेसिकली रीपेमेंट 12,000 का करना है, तो वही बेसिकली मैं 4 महीने के लिए चला दूंगा। तो 3,000 इंटू 4 बेसिकली यू आर गेटिंग 12,000 एज योर पेमेंट। तो 2,000 का तुम्हारा वहां से प्रॉफिट निकल गया। तो इट्स ऑल अबाउट बेसिकली द इंफॉर्मेशन विच यू इनिशियली गैदर and then basically use it to basically frame the particular product or the service you want to basically provide them. That's how things work. আচ্ছা, হ্যাঁ, মানে ডে টু ডে রিপেমেন্টের উপরে হ্যাঁ লোনটা দেওয়া। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। Yes, yes. Yes, Saranya. Hello, am I audible? Hmm.
Yes, you are হ্যাঁ, তো audible. ব্যাপারটা হচ্ছে যে বেঙ্গলিতে বলতে পারি না? Yeah, you go বল on, go বল on. বল হ্যাঁ, তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি বুঝলাম তোমরা যে ব্যাপারটা বলছো যে ফ্লিপকার্ট আর অ্যামাজন, বাট ব্যাপারটা হচ্ছে যে এবার এইটা তো এন্ড অফ দ্য ডে গিয়ে, কারণ ফ্যাবমার্ট বলে একটা কোম্পানি ছিল যেটা 1999-এ ফাউন্ড হয়েছিল, 5 জন কলেজ ফ্রেন্ডস করেছিল, ওটা কিন্তু ইন্ডিয়ার প্রথম ই কমার্স, ঠিক আছে, যেটা 2013-তে বন্ধ হয়ে যায়। তো এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে এবার কপি ক্যাটি যদি বলা হয় তাহলে ফ্লিপকার্টের আগে থেকে ফ্যাবমার্ট ছিল ইন্ডিয়াতে, এটি ইন্ডিয়াতে প্রথম মানে ই কমার্স কোম্পানি ফ্যাবমার্ট। তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে ওটা 2013-তে বন্ধ হয়ে যায়। তো এর মানে তো এন্ড অফ দ্য ডে এটা কোথাও না কোথাও কি ওই ব্যাপারটা হচ্ছে যে না আমার কোম্পানিতে ইনভেস্টার্সরা কতটা পাওয়ারফুল বিজনেস মডিউলে, মানে বিজনেস ইন্ডাস্ট্রিতে আমার ইনভেস্টার্সরা কতটা পাওয়ারফুল। No. It's totally not. It's depends on how unique your startup is, basically. अब देखो, there are two startups, two companies, Swiggy and Zomato. दोनों में तुम देख रहे हो कि बहुत सारा डिफरेंसेस है। एक स्विगी में देख पा रहे हो कि तुम डाइनिंग का कुछ ऐसा ऑप्शंस नहीं ऑप्ट कर पा रहे हो। मीनवाइल जोमेटो में तुम वही डाइनिंग का जो ऑप्शंस है वो मतलब कर पा रहे हो। दैट इज दैट यूनिक फीचर। सो जो जितना तुम्हारा एक स्टार्टअप यूनिक रह रहा है, जितना तुम्हारे कस्टमर के लिए अपीलिंग हो रहा है, तो उतना ही वो चलेगा। ठीक है। ओके। And और I भी will add on हम्म और एक यस एड ऑन भी करूंगा मैं, ठीक है। दैट विल बी बेसिकली देख फैबमार्ट का ना जो था उनका, कि आफ्टर दिस बेसिकली बिजनेस मॉडल, इस सब के बाद में ना एक बैक ऑफ द बेसिकली ऑफिस ना, तुम्हारा जितना इन्वेस्टमेंट्स है, सपोज बेसिकली यू गॉट अ 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट, तो वो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तुम कैसे चैनलाइज कर रहे हैं, तुम कितना बर्न कर रहे हैं, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बन जाता है। तुमको वैसे ही बंद करना है कि तुम्हारा स्टार्टअप लॉन्गर टू लॉन्गर टर्म चल सके, सस्टेन कर सके। तुम इनिशियली इतना बर्न कर दिया मार्केटिंग के पीछे, कस्टमर एक्विजिशन के पीछे, कि तुम्हारे बाद में उतना फंड बचा ही नहीं और तुम उतना कस्टमर एक्वायर भी नहीं कर पाया, राइट। तो वहां पे जाके तुम्हारा स्टार्टअप तो बंद होना ही है। एंड द एडवांटेज फ्लिपकार्ट गॉट इज बेसिकली, जैसे तुमने बोला कि ফ্যাবমার্ট যেরকম তুই বললি, ফ্যাবমার্ট ইনিশিয়ালি 2013-তে বন্ধ হয়ে গেল। তো হ্যাঁ, ওরা ওটা নিশ্চয়ই ব্যাংক্রাফট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এবার ওরা অনেকগুলো যে ওরা বেসিক্যালি লিটারালি ভুল করেছে, ওরা যে অনেকগুলো ভুল করেছে, যখন ফ্লিপকার্ট আসলো না, তাও ওরা বেসিক্যালি দেখলো যে বেসিক্যালি ওরা কতগুলো ভুল করেছে। এন্ড দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং উইচ উই নিড টু লার্ন। ইভেন জোম্যাটো অ্যান্ড বেসিক্যালি, যখন জোম্যাটো অ্যান্ড সুইগি নিয়ে কথা হচ্ছে, তো জোম্যাটো সুইগির আগে এসেছিল ফুড পান্ডা। ফুড পান্ডা বলে একটা ছিল বেসিক্যালি খাবার অর্ডার দেওয়ার জিনিস, ঠিক আছে, বাট ইট ফেল্ড। तो देयर आर सम थिंग्स विच बेसिकली रिजल्ट्स, राइट, कि तुम्हारा बेसिकली एक स्टार्टअप क्यों नहीं चला उस आइडिया पे, और बाद में जो आया है वो क्या बेसिकली चेंजेस किया कि जिस हिसाब से उसका स्टार्टअप चला। तो देयर आर सम डिफरेंसेस, देयर आर सम बेसिकली लाइक कंपनी बेसिकली व्हाट टू टेल, कंपनी का वर्क फ्लो, कंपनी का बिजनेस मॉडल, बिजनेस कैनवास तुमको बेसिकली डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। जिस तरह से तुम बेसिकली केस स्टडी करने के बाद तुमको पता चलेगा कि हाँ, दीज आर द प्लेसेस वेयर दिस कंपनी फेल्ड। एंड हमको जब करना है इसी सिमिलर आइडिया पे एक स्टार्टअप, तो हमको ये पॉइंट्स को ना नोट करना है। सो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक, क्योंकि खुद मिस्टेक करेगा तो खुद ही सफर करेगा। तो उससे बेहतर है कि दूसरे जो गलती कर रहे हैं उससे सीखो। So that's one of the most important factor to make a startup more sustainable in the longer run, हाँ right? Am I good? Have I answered the question properly? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। I would Okay, like to sure. add on one thing. जब उनका ऑनलाइन नहीं चला, फिर उन्होंने ऑफलाइन रिटेल में आ गए, फिर फैबमार्ट फैब इंडिया बन गया, अब वो ठीक ठाक ही चल रहा है। सो না না, আমি বলছি ওয়েবসাইটটা তো শাটডাউন করে দিয়েছিল ওরা, লাইক যেটা হ্যাঁ মেইনলি ই কমার্স হ্যাঁ ছিল, ওটাই তো, ওটা Now বন্ধ করে দিয়েছিল। this thing of changing the basically business model is called pivoting. हमला this is a basically very advanced concept, ठीक है। जब Instagram was not initially Instagram, what we see actually right now, that was something different. बट एक राइट पॉइंट के समय जब तुमको दिख रहा है कि तुम्हारा बिजनेस मॉडल वर्क नहीं कर रहा है, देन बेसिकली यू पाइवट टू समथिंग एल्स, राइट, यू चेंज योर बिजनेस मॉडल। तुम अब पाइवटिंग का भी एक लेवल रहता है कि तुम एकदम ही पूरा बदल दिया, या तुम कुछ लाइक ऑफलाइन से ऑनलाइन आया, ये सब छोटा मोटा ट्विस्ट एंड टर्न्स किया। तो दिस पाइवटिंग कॉन्सेप्ट आल्सो वर्क, राइट, बिकॉज आफ्टर टाइम तुमको अपना बेसिकली घर भी चलाना, यू टू अर्न योर ओन ब्रेड। अगर एक जगह में घिस घिस के तुम्हारा नहीं चल रहा है, आफ्टर यू टाइम बेसिकली यू गेट अ रियलिटी चेक कि नहीं चलेगा, then basically कुछ तो करना है। तो basically you at that time basically you pivot to some different business model। So this concept of basically changing the business model is called pivoting। Okay, we can move on। there's one other hand, Walker. Yeah, you can speak.
হ্যালো, আহ, am I audible? আচ্ছা আরেকটা আহ, উম, আমি বলবো কি Argo, please wait for a while. Vakab ও, was waiting to. Yes, Vakab. Bhaiya, as you said right now that no two companies are identical, and the example you gave about Zomato and Swiggy. But what about Ola, Uber? Aren't they like exactly the same? नहीं, ओला एंड उबर भी सेम नहीं है। ठीक है, अगर तुम देखोगे ना ओला का चार्जेस एंड फेयर का चार्जेस, तो एक बेसिकली पर किलोमीटर में ना एक चार्ज रहता है कि तुम पर किलोमीटर तुम्हारा कितना चार्ज रहेगा। पर किलोमीटर सपोज ओला का 7 रुपया है तो उबर का 8 रुपया है। पर अगर तुम टैक्सी में उठेगा ही तो तुमको एक बेस फेयर पे करना पड़ेगा 60 रुपया का। तो वहां पे शायद बेसिकली अगर इनिशियली तुम पकड़ लो पर किलोमीटर में 10 रुपया का चार्ज है उबर का और ओला का है 8 रुपया, तो उबर इज चार्जिंग मोर पर किलोमीटर। बट द बेस फेयर ऑफ उबर इज कंपेरेटिवली लेस। ठीक है, उसका समझ लो उसका बेस फेयर इज 40, जहां पे ओला का है इज अराउंड 50 to 60। ठीक है, तो ऐसे करके तुम्हारा जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है इसको बेसिकली यूनिट यूनिट इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो हर एक जगह में तुमको बेसिकली तुम बिजनेस को कैसे स्ट्रक्चर कर रहे हैं, तुम्हारा प्रॉफिट का जो रेवेन्यू का स्ट्रीम्स है। आई विल बी कमिंग टू द रेवेन्यू मॉडल। जब रेवेन्यू मॉडल का समय आएगा देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस थिंग्स। तो वहां पे बेसिकली तुम्हारा स्ट्रक्चरिंग में दे नीड टू डिफरेंशिएट कि तुम प्रॉफिट एग्जैक्टली कैसे कमा रहा है। तो एग्जैक्टली दोनों सेम नहीं है। एंड ओला का भी अगर तुम देखोगे तो ओला हैज आल्सो इन्वेस्टेड इन बेसिकली ईवीज, राइट। जहां पे उबर हैज आल्सो उबर ने स्टार्ट किया तो उबर ईट्स बोल के स्टार्ट किया था, जहां पे दे वर ट्राइंग टू बेसिकली मैच विद जोमेटो एंड स्विगी, पर उतना चला नहीं। पर उबर का शटल है जो वहां पे ओला का शटल नहीं है। So there are few differences, right? But you need to be very specific and you need to find out the differences. That's it. Yeah, Yes, Argo. Argo. আচ্ছা আমার কোয়েশ্চেনটা ছিল যে কাস্টমার অ্যাকুইজিশনে যে ব্যাপারটা থাকে, ক্যান উই থিঙ্ক অফ ইট অ্যাজ কি যত হতে পারে মানে অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল ওটাকে অর্গানিক রাখা উড বি দ্য বেস্ট পসিবল থিং। কেন কি কাস্টমার অ্যাকুইজিশন ইজ সামথিং যেটার জন্য কোম্পানিরা অনেক পয়সা বার্ন করে। অ্যান্ড লাইক Correct. মার্কেটিং এর জন্য তো যদি একটা কোম্পানি ভালো ফান্ডিং পেয়েছে তো ও মার্কেটিং করে ওইটা অনেক হাই কস্ট কাস্টমার অ্যাকুইজিশন করতে পারে, কিন্তু ইফ দে কান্ট সাস্টেইন দ্যাট কাস্টমার ফর আ লঙ্গার রান দেন আলটিমেটলি ওই পয়সাটা ওয়েস্ট চলে যাচ্ছে। Exactly. যেমনি You পিডব্লিউ are এর আমি 100%. একটা এক্সাম্পল। You are 100% right, অর্ঘ্য। ঠিক আছে, এখানটা একদমই ঠিক। তুই যে তোমার অতটাই টাকা তোমার বার্ন করতে চাও সেটা তুমি বেসিক্যালি বার্ন করতে পারো। ঠিক আছে, নিজের অকাতের থেকে বাইরে গিয়ে তুমি বেসিক্যালি বার্ন করতে পারো না। যদি বার্ন করো তাহলে ইউ উইল ফেস ব্যাংক্রাপসি। সেকেন্ডলি দেখ, আমি বেসিক্যালি ধর আমার প্রোডাক্টটাই এত ভালো বানালাম যেখানে বেসিক্যালি প্রথমবার যখন কাস্টমারকে আনতে হলো আমাকে হয়তো একটু টাকা খরচা করতে হলো, আমার প্রফিটটাও হয়তো অনেকটা কমে গেল। বাট আমার প্রোডাক্টটা যদি খুব ভালো হয় তাহলে সেকেন্ড টাইম আর কাস্টমারকে ফেরত আনতে আর আমাকে বেসিক্যালি খরচা করতে হবে না, ও আমার কিন্তু রিপিট কাস্টমার হয়ে যাবে। তো দ্যাট অলসো ডিপেন্ডস হাউ গুড ইউর প্রোডাক্ট ইজ অ্যান্ড হাউ মাচ মোর ইউর প্রোডাক্ট ইজ গোনা সেল, রাইট। আমি একটা বেসিক এক্সাম্পল বলি। যদি আমি লাইক আই ডোন্ট নো হাউ মেনি অফ ইউ স্মোক সিগারেটস, বাট সিগারেট যদি আমরা ধরি, ঠিক আছে, সিগারেটস এর বেসিক্যালি রিকল ভ্যালু অনেক বেশি। ঠিক আছে, অনেক বেশি। ঠিক আছে, কিন্তু প্রফিট মার্জিন ইজ ভেরি লেস ইন সিগারেটস। ঠিক আছে, ম্যানুফ্যাকচারিং থেকে ডিস্ট্রিবিউটর থেকে যখন তুমি একটা নর্মাল দোকানে সিগারেট কিনতে যাও তো এখানে বেসিক্যালি মার্জিনস আর ভেরি লেস। বাট এত পরিমাণে বিক্রি হয় যে বেসিক্যালি মার্জিনটা কম হওয়া সত্ত্বেও তোমার জিনিসটা পুষিয়ে যায়। তো আইদার ইউর বেসিক্যালি মার্জিন শুড বি মোর, ঠিক আছে, বাট ইউর রিপিট কাস্টমার শুড বি লাইক লার্জ। বাট আবার তোমার বেসিক্যালি তোমার মনে হয় যে তোমার কাস্টমার খুব একটা রিপিটেড না, তাহলে তুমি মার্জিনটা বেশি রাখো। তাহলে ওভারঅল ইউ উড ল্যান্ড অন দ্য সিমিলার টাইপ অফ বেসিক্যালি সিনারিও যেখানে তুমি ইউ আর আর্নিং আ গুড অ্যামাউন্ট অফ রেভিনিউ। সো ওটা তোমার রেভিনিউ এর উপরে স্ট্রাকচার করতে হবে। এই যে প্রত্যেকটা পয়েন্ট একটা বিজনেস পয়েন্টের তোরা যেগুলো তুলছিস, ঠিক আছে, এভরি ওয়ান অফ ইউ, কেউ কাস্টমার অ্যাকুইজিশন নিয়ে বলছে, কেউ রেভিনিউ নিয়ে বলছে, এই প্রত্যেকটা মডেল আমরা আগামী বেসিক্যালি স্লাইডসে আমরা সবকটা পয়েন্টস কিন্তু ধরলে মানে ডিটেলসে এক্সপ্লেনও করেছি। সো মাই সাজেশন উড বি যে আমরা 3-4টে স্লাইড এক এক করে কমপ্লিট করি, ঠিক আছে, দেন বেসিক্যালি উই টেক আ ব্রেক এন্ড দেন উই আনসার ইউর কোয়েশ্চেন্স এন্ড দেন अगेन মুভ টু 3-4 স্লাইডস। নাহলে উই উড বি স্টেইং হিয়ার অনলি। এন্ড তোদেরও অনেকগুলো যে কোয়েশ্চেন্স এন্ড ডাউটস আছে তোরা হয়তো ওইগুলো আমাদের এক্সপ্লেনেশনের পর তোরা হয়তো বুঝে যেতে পারিস। সো ওয়েট ফর সাম টাইম, ঠিক আছে, 3-4টে স্লাইড শেষ হোক, তারপর আমরা একটা ব্রেক নেবো এন্ড দেন উই ক্যান বেসিক্যালি এন্টারটেইন দ্য কোয়েশ্চেন্স। ডাজ দ্যাট সাউন্ড গুড? গিভ মি আ থাম্বস আপ ইফ এভরিওয়ান এগ্রিজ উইথ দ্যাট। Okay, So okay. let's go That to sounds the good. slide then. Shankit, continue. Yes. So next is our working model. So basically,
अब इसमें क्या है कि हम लोग को फंक्शनल प्रोटोटाइप जो भी एंड ऑल होता है वो सब प्रोवाइड करना होता है। लाइक अभी फॉर अ टाइम बीइंग लाइक रिप्रेजेंटेशन तुम्हारा सर्विसेज का क्या होगा, तो वो सब शो करना होगा। लाइक यू कैन टेक एज एन एग्जांपल कि तुम्हारा कोई एक टेक तुम एक एड टेक स्टार्टअप खोलना चाहते हो। सो उसमें क्या है कि तुम्हारा जो फ्लोस जो मतलब फ्लो चार्ट होगा, या तुम्हारा एप्लीकेशन होगा, वो सब जो so you can go with the key components, that is stakeholders, producers, services providers, ये सो है, प्रोसेस फ्लो है, ब्राउज ऑर्डर पेमेंट डिलीवरी, जो तुम्हारा एग्जांपल्स तुम देख सकते हो स्विगी के लिए, बेसिकली जोमेटो एंड ऑल। प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी विच आई एम टॉकिंग अबाउट, कि राइट नाउ व्हाट इज अ वर्किंग मॉडल फॉर दैट, कि वेबसाइट्स और एप्स जो तुम्हारा एक एडटेक के लिए चाहिए हो रहा है, कि इट्स अ मीडियम फॉर यू, कि जिसके थ्रू तुम लोग अपने कंज्यूमर्स को कंज्यूमर्स या कस्टमर्स जो बोलो, वो लोग को तुम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रहे हो। ठीक है, दूसरा रेवेन्यू मॉडल हो गया, हाउ योर बिजनेस इज गोइंग टू अर्न। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फीडबैक लूप, लाइक जो भी तुम्हारा कस्टमर जो भी फीडबैक दे रहा है उसके थ्रू तुम अपने जो भी सर्विसेज जो तुम्हारे टेक के हैं या कुछ भी जो तुम्हारे सर्विसेज है उसको और इम्प्रूवमेंट कर रहे हो फीडबैक्स के थ्रू। So basically, that is the working model. So I'm going to the next slide. I hope so. या किसी को कुछ doubts है इसके regarding? Okay, ठीक है। हर्षांकित, एक बार में 3-4 स्लाइड्स करने के बाद एक बार पॉज करेंगे। हाँ, okay, ठीक है। Next, I'm going to the services provided. That is like टेक्नोलॉजी कंपनीज में, अगर मतलब टेक कंपनीज बेसिकली उसमें देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट हो गया। माइक्रोसॉफ्ट क्या प्रोवाइड कर रहा है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोवाइड कर रहा है, क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, या आईटी सोल्यूशन। क्लाउड सर्विसेज में मेनली तुम लोग याद जानते होगे अजूर होता है। ठीक है, एप्पल में तुम देख ले रहे हो कि वो अपने कंज्यूमर्स को इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोवाइड कर रहा है, एंड इनफैक्ट सॉफ्टवेयर्स and digital certificates, that is there. IBM is also going for cloud services, that is cloud computing and AI solutions, that's it। ठीक है, तो ये सब तुम्हारा एक एग्जांपल हो गया कि सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है हर एक टेक कंपनीज हो गया। अब नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर द ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, दैट इज ऊबर। ऊबर क्या है? ऊबर जैसे भैया ने बात किया कि राइडिंग के लिए हम लोग कर रहे थे। ऊबर ईट्स जो पहले वो लोग कर रहा था, ऊबर का एक वेंचर था, दैट वाज ऊबर ईट्स फॉर फूड डिलीवरी। देन देयर इज फेडेक्स फॉर कोरियर एंड लॉजिस्टिक्स, जो तुम्हारा बड़ा से बड़ा हो या छोटा से छोटा सामान ट्रांसपोर्ट कर रहा है इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट। देन देयर इज टेस्ला which is providing electrical vehicles with autonomous driving technology and energy solutions, कॉज वो लोग अपना क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सॉरी इलेक्ट्रिकल ईवीज प्रोवाइड कर रहा है तो उसके थ्रू। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज टारगेट मार्केट। अब टारगेट मार्केट हो गया कि हम लोग किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स को टारगेट करके वो कंपनी अपना रीच बढ़ाना चाहता है बेसिकली। या जो लिखा हुआ है कि टारगेट मार्केट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स दैट company aims to reach with its products or services. This group is defined based as a characteristics such as age, gender, income, interest, locations, or behavior that makes them more likely to purchase the company's offering. सो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी हो गया, ऊबर, फेडेक्स, नाइकी, टेस्ला, ये सब है ही। अब उसमें से तुम देख पा रहे हो कि नाइकी का ऊपर में है कि कस्टमर टारगेट ऑडियंस उसका कैसा है। मतलब बेसिकली उसका नाइकी का जो अभी स्नीकर्स का जो चल रहा है तो उसका क्या है, तो उसका एक ग्राफ यहाँ प्रोवाइडेड है। देन टेस्ला का एक्विजिशन अभी टारगेट ऑडियंस क्या है वो सब गिवन है। ठीक है, तो ए लेट्स गो फॉर एन एग्जांपल, लाइक एक बहुत ही क्या बोले मोस्ट फेमस एग्जांपल है जो दिखा जब किसी को सेल करना होता है प्रोडक्ट उसको बताया जाता है, दैट इज कि अगर एक प्लेस बेसिकली क्या था, हाँ एक नाइकी कंपनी, नाइकी ही का था शायद तक ये एग्जांपल। नाइकी क्या हुआ था कि अफ्रीका में गया था। अफ्रीका में क्या सीन था कि वहाँ लोग बिना जूतों
के ट्रैवल करते हैं, मतलब चलते थे पहले। इट्स एन एग्जांपल, सो गाइस कोई प्रॉब्लम होगा तो समझ लेना, ठीक है? सो क्या है इसमें कि नाइकी का क्या था कि नाइकी एक बार अपने एक क्या बोलते हैं, एक वन ऑफ इट्स एम्प्लॉयी को वो अफ्रीका भेजा था। तो अफ्रीका में सीन क्या था कि उसको बोला गया था कि पता करने के लिए, स्टडी करने के लिए कि वो लोग का टारगेट ऑडियंस है या नहीं। सो वहाँ क्या हुआ कि जो फर्स्ट एम्प्लॉयी गया था, वो बोला कि देखो यहाँ सब कोई जूता-चप्पल पहन रहा है, जूता-चप्पल कुछ नहीं पहनता है, यहाँ तो सब खाली पैर घूमता है। तो इट्स वेरी टफ टू सेल देयर प्रोडक्ट्स दैट इज़ योर कि तुम्हारा जूता-चप्पल एंड ऑल, ठीक है? जूता बेसिकली नाइकी शूज़ बेचता है तो जूता एंड ऑल। फिर एक और बार क्या हुआ कि सेकंड टाइम एक और एम्प्लॉयी को भेजा गया था विदिन 1 ईयर और 6 मंथ्स के बाद में ही। तो अब सीन क्या हुआ कि वो एम्प्लॉयी क्या बोलता है कि तुम्हारा कि यहाँ तो कोई जूता कुछ नहीं पहनता ना, फुटवियर्स का यहाँ नहीं है। तो वी कैन डू वन थिंग, वी कैन मेक देम यूज्ड टू दिस फुटवियर का थिंग। अब वो लोग जब फुटवियर्स यूज़ करना स्टार्ट करेगा, तो आराम से ये हो जाएगा। तो दैट वाज़ देयर टारगेट मार्केट, वी कैन गिव एन एग्ज़ाम्पल, ठीक है? सो यही है कि टारगेट हम लोग को समझना पड़ेगा कि टारगेट मार्केट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली तुमको सर्विसेज़ अपना मतलब तुम्हारा जो सर्विसेज़ के अकॉर्डिंगली तुम्हारा टारगेट मार्केट मार्केट को पहले देखना होगा, उसके समझना होगा, ठीक है? अब तुमको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो तुम लोग पूछ सकते हो अभी। हुँ। किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड। নাইকি যে প্রবলেমটা তুমি বললে ওটা কেন ইলাবোরেট লাইক সলিউশনটা লাস্টলি কি বেরোলো? लाइकली सोल्यूशन क्या था कि जो सेकंड एम्प्लॉय बोला कि हम लोग को यहाँ तो बहुत अच्छा मार्केट है, सो दे प्रोवाइडेड क्या था 2-3 कंसाइनमेंट्स ऑफ शूज दे हैव प्रोवाइडेड टू देम। सो इससे क्या हुआ ना कि अब दे यूज्ड टू वेयर दोज फुटवेयर्स। अब इससे क्या हुआ कि मार्केट बढ़ गया वो लोग के लिए। अब जब जूता कोई पहनना स्टार्ट करेगा तो होता है ना कि अकस्टम टू दैट वेयरिंग ऑफ शूज, तो उसके बाद से वहाँ बिकना स्टार्ट हो गया। That was the solution by them. हाँ, Saranya. शरण्या। Acha, so as far as you said, so there's a thing I want to say कि Nike was in American business and shoe business for a very long time. Okay, so what you are saying, they didn't target a market, they made a market in America, of Africa, right? Like giving Exactly. away the consignment. So that Exactly. is what I'm Exactly. saying. It is হুম, it is a like ওটাই বলছি ওটা একটা বড় লাইক ইট ইজ ওটা একটা অলরেডি একটা ইউনিকর্ন কাইন্ড অফ নিয়ার অ্যাবাউট ইউনিকর্ন হয়েও আফ্রিকায় গেছে, ঠিক আছে? হুম, হুম, তো ওই পয়েন্ট অফ ভিউতে ধরো এবার আমি একটা স্টার্ট আপ, আমাকে অলরেডি অনেকগুলো মার্কেট স্যাচুরেশনের আমি মাথা ব্যথা নিয়ে বসে আছি, আমি এই জায়গাগুলো থেকে আমি কিভাবে নিজেকে বের করবো, আমি ওটাই বলছি। মানে এখানে তো ও মার্কেটটা নিজে তৈরি করেছে, তাই না? যেটা এবার অন্য যদি আমি এবার হুট করে এবার শ্রীলেদাসের এবার শ্রীলেদাসকে গিয়ে আমি ধরি, এবার শ্রীলেদাস তো গিয়ে আফ্রিকায় গিয়ে বসতে পারবে না, রাইট? বিকজ ওর মার্কেট স্যাচুরেশন ওখানে পাবে না, লাইক ওখানে নাইকি হয়তো ধরে রেখেছে বা আদার এমএনসিস ধরে রেখেছে। তো yes. তোর কোয়েশ্চেনটা কি এক্স্যাক্টলি তুই জানতে কি চাইছিস? হ্যাঁ, কোশ্চেনটা এটাই হচ্ছে যে বেসিক্যালি এই যে ওই দাদা যে বললো যে মার্কেট ওরা তৈরি করেছে, এবার এই যে রিস্কটা, এটা তো আমরা বড় বিজনেস ছাড়াও মানে লাইক যেগুলো ছোট ছোট স্টার্ট আপস, ঠিক আছে, এগুলো তো নিতেই পারবেন। আমি ওটাই বলছি যে হাউ টু ফাইট উইথ দিস থিং, লাইক ব্যাংক লোন দিলে তো এত হায়ার অ্যামাউন্টের লোন তো নিতে পারবো না। দেখ বেসিক্যালি যখন একটা ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করতে হয় তখন রিস্ক তো থাকে, বুঝলি? তখন নাইকি যেরকম একটা ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করেছিল কারণ ওদের কাছে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ টাকা ক্যাপিটাল ছিল। তো ইনিশিয়াল স্টেজে একটু হার্ড স্টার্টআপস এর জন্য নতুন একটা ক্যাটাগরি বানানো, বাট ইভেন্চুয়ালি হয়ে যায়, বুঝলি তো? गाइस ओके ठीक है, ये थोड़ा सा हो गया उटपटांग। एक एग्जांपल दे दिया, ठीक है? एक और एग्जांपल दे दे रहे तुम्हारा फिजिक्स वाला को, भाई एडटेक ही ले लो कोई भी। फिजिक्स वाला इतना जा रहे हैं I क्योंकि guess দুটোর market different. Both has a different हाँ, market. क्या Like Nike has a different market and Siledas has a different market. কমপ্লিটলি yes. ডিফারেন্ট মার্কেট, Like কমপ্লিটলি sportswear ডিফারেন্ট এর জন্য ডেমোগ্রাফিক্স। Nike Adidas is the first thing that comes to our mind when it হুম, comes হুম, to sportswear or like jersey আর and etc. শ্রীলেদার্স আর নাইকির ক্ষেত্রে পুরো স্পিয়ারটাও পুরো আলাদা, যে স্পিয়ারে Exactly. ওরা আর officials এর ক্ষেত্রে আমাদের এক্স্যাক্টলি হয়তো like Siledas আসতে পারে in local, আর বড়তে এলে Patek Philippe and all. Sorry, not Patek Philippe, Louis Philippe.
তো Guys, সিলেবাসের কম্পিটিশনটা ওদের সাথে থাকবে ইন কেস অফ ফুটওয়্যার। यस यस। सो देखो एक्चुअल में मेरा मेन मोटिव है कि ये एग्जांपल देने का क्या था कि वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर मार्केट कि हम लोग का टारगेट ऑडियंस क्या है, ठीक है, और कुछ नहीं। अब फॉर दैट इन माय एग्जांपल उस टाइम क्या हुआ कि वहाँ दे आर क्रिएटिंग देयर एग्जिस्टेंस कि ये होगा तो उसके बाद यूज टू हो जाए, ठीक है। अब देयर आर मेनी फ्यू मोर एग्जांपल्स, लाइक मोटर का तुम देख लोगे, आई होप सो श्रीलंका या कहीं और साइड में था कि वहाँ का भी सुन रहे थे कि फर्स्ट दे वर यूजिंग चाइना मेड मोटर बाइक्स और समथिंग, बट व्हेन अफोर्डेबिलिटी का बात आया एंड ड्यूरेबिलिटी का बात आया तब इंडियन मेड्स जो बाइक्स था दैट वाज हीरो, मोस्टली हीरो ही का था, तो वो सब यूज करने लगे। तो बेसिकली मेरा क्या कहने का मतलब है यहाँ ये है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर टारगेट ऑडियंस कि कैसा टारगेट मार्केट है और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को उसका वर्क करना चाहिए और कुछ नहीं। हाँ, सो एनी मोर क्वेश्चंस? I I guess think there are no more physics wala. questions. Acha, Argo is there. Argo is there. Yeah. Well, Go on, Argo. I think physics wala can be a very great example ki like एक proper ये target market নিয়ে ওইটাকে কি করে বাড়ানো, কেন কি like physics ওয়ালার আগে আমার যত মনে আছে বাইজুস এন্ড আনএকাডেমি কোর্সেস বিগ ছিল, বাট দে ওয়্যার ridiculously expensive for average Indian students, specifically স্টুডেন্টদের কাছে তো এমনিতে পয়সা থাকে না। So না, বাট they ফিজিক্স ওয়ালার অনেক ফ্লজ আছে, because I have been through this, so like all of us have been through this, ঠিক আছে। তো ফিজিক্স ওয়ালার যেটা হয়, ফিজিক্স ওয়ালার এত সাবস্ক্রিপশন হওয়ার সত্ত্বেও অ্যালেন ইজ স্টিল লিডিং দ্য মার্কেট, দ্য এডটেক মার্কেট। দ্য রিজন ইজ যে ফিজিক্স ওয়ালাকে কোর্স ফিটা এতটাই কম যে ফিজিক্স ওয়ালাটাকে লোকে অ্যাজ এ ব্যাকআপ রাখে, নট অ্যাজ এ প্রাইমারি লাইক কোর্স। কেউ ম্যাক্সিমাম লোকজন যারা ফিজিক্স ওয়ালা থেকে পড়ে, ঠিক আছে, ম্যাক্সিমাম আর ইদার অ্যাডমিট লাইক ওদের অ্যাডমিশন নেওয়া আছে ইদার অ্যালেন অর আন একাডেমি অর এনিথিং লাইক দ্যাট। ফিজিক্স ওয়ালাটাকে হয়তো ওরা যেখানে ওখানে যে প্রবলেম গুলো পেলো, কোনো একটা টিচার ভালো লাগলো না, সেটা ওরা ফিজিক্স ওয়ালা থেকে করে। ম্যাক্সিমাম কেসে এটাই হয়। ফিজিক্স ওয়ালার যতটা অডিয়েন্স, সবাই ফিজিক্স ওয়ালার অডিয়েন্স নয়। I think we can see it in another way কি ফিজিক্স ওয়ালা টার্গেট অডিয়েন্সটা হচ্ছে কি যারা অনেক লো ইনকাম গ্রুপ থেকে আছে and they want to have a মানে they want to use the coaching services but they can't afford paying 1 lakh 2 lakh, they can opt for physics wala, and I think they ওই পপুলেশনটা ইন্ডিয়াতে অনেক বেশি আছে comparatively those who can afford like a 1 lakh 2 lakh rupees কোচিং সার্ভিস। পপুলেশনটা বেশি আছে, বাট ওই পপুলেশনে থাকা সত্ত্বেও এই পড়াশোনা করে ডাক্তার হওয়ার এই মেন্টালিটি লোকজন অনেক কম। দুজনই ঠিক আছিস। ফিজিক্স ওয়ালা যে টেম থাকে মানে টোটাল অ্যাড্রেসেবল মার্কেট যেটা থাকে ওটার মধ্যে দুজনই আছে, যারা কোনো একটা প্রায়র একটা ইনস্টিটিউশনে সাবস্ক্রিপশন নিয়ে রেখেছে যাদের অ্যাভারেজ ইউনিট প্রাইস অনেক বেশি, লাইক আকাশ এলএন যেগুলো আছে 50,000 60,000 নেয় ওরা, আর ফিজিক্স ওয়ালার ইউনিট প্রাইস অনেক কম কম্পারেটিভলি, তো ওরা ব্যাকআপ হিসেবে রেখে দেয়, ওটা তো আছে। বাট ওই পপুলেশনও আছে যারা কিচ্ছু নেয় না, জাস্ট ফিজিক্স ওয়ালা নেয় বিকজ দে কান্ট অ্যাফোর্ড ইট, বুঝলি তো? তো বোথ আর কন্ট্রিবিউটিং টু যদি ওই পপুলেশনটা আমরা দেখি তাহলে ফিজিক্স ওয়ালার কাস্টমার খুব কম। ইয়া কম্পারেটিভলি এলএন বানসাল আকাশ অনেক আগে স্টার্ট হয়েছিল, ফিজিক্স ওয়ালা অনেক পরে স্টার্ট হয়েছিল, তো কাস্টমার অ্যাকুইজিশন তো ওদের বেটার হবে অবভিয়াসলি। দাদা একটা কয়েনের তো দুটো সাইড। Yeah, they had the advantage of being the earlier in the market. সেইভাবেই এগোলে ভালো হয় আমার মনে হয়। Exactly. Yes, correct. Oh, thank you. Correct. चलो देवदत्त, you can start from your side. I guess তোর জায়গা না, you would take it. Okay, चलो. Yes. Can you move to the next slide? Yes, done. So अब हम बहुत important part में आ रहे हैं धीरे-धीरे. So it is market analysis. So what is market analysis? It is basically breaking down the demographics of the market that you are going to enter in future. Okay. So इसमें 3 important aspects हैं mainly. एक है market size, एक है market growth, एक है market trend. Market size क्या है? Market size is basically the amount of revenue you can generate from 100% of customer acquisition of your TAM. बहुत टेक्निकल बोल दिया,
मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर तुम जो मार्केट टारगेट कर रहे हो, जो कस्टमर्स टारगेट कर रहे हो, उनमें 100% लोग तुमको अगर एटेक का एग्जांपल ले लेते हैं, तो स्टूडेंट्स अगर ले रहे हो तुम 1 करोड़ स्टूडेंट्स ले रहे हो तुम, 1 करोड़ स्टूडेंट्स यू आर टेकिंग एज ए टैम। सो अगर सब ने तुम्हारा प्रोडक्ट ले लिया तो कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, दैट इज योर मार्केट साइज। ओके, समझ गया ना सब? ऐसा कोई है जिसको समझ नहीं आया? দাদা একটু আরেকবার বলবে এই পয়েন্টটা? বেসিক্যালি হচ্ছে কি, মার্কেট সাইজ হচ্ছে তোর, তুই যে মার্কেটটাকে টার্গেট করছিস, ওই মার্কেটটার সব কাস্টমাররা যদি তোর প্রোডাক্টটা নিয়ে নেয়, তুই যদি 100% কাস্টমারকে অ্যাকোয়ার করে নিতে পারিস, তুই যে টাকাটা পাবি ওটাই হচ্ছে মার্কেট সাইজ। বুঝলি? আচ্ছা আচ্ছা, ওটা 100 করোড় হতে পারে, 200 করোড় হতে পারে, 300 করোড় হতে পারে, হোয়াট এভার। ওটা হচ্ছে मार्केट साइज। वी विल गेट इनटू द डिटेल्स लाइक टेम, सैम, सोम, बहुत कुछ है टेक्निकलिटीज में, बाद में आता हूँ उनमें। सेकंड पॉइंट है मार्केट ग्रोथ। मार्केट ग्रोथ इज बेसिकली लाइक जो मार्केट में तुम एंटर कर रहे हो वो ग्रो हो रहा है। लाइक एडटेक ईवीज का एग्जांपल ले लेते हैं। ईवीज लाइक वर्ल्ड वाइड $80 बिलियन में था, नेक्स्ट ईयर $100 बिलियन में हो गया, 2030 में $120 बिलियन हो रहा है। सो इट इज अ ग्रोइंग मार्केट, राइट? तो तुम्हें ग्रोथ एनालाइज करना पड़ेगा उस मार्केट का जिसमें तुम एंटर होने वाले हो। इफ इट इज अ डिक्लाइनिंग मार्केट देन यू शुड नॉट एंटर इट। इट इज प्रेफरेबल नॉट टू एंटर इट, बट तुम अगर उसमें कुछ ब्रेक तो ला सको देन इट इज ओके। तो मार्केट ट्रेंड भी देखना पड़ेगा, जो जिस टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करने पे ट्रेंड में है कि नहीं। एजुकेशन में पहले ऑफलाइन था, फिर एक ट्रेंड आया डिजिटलाइजेशन का, फिर एडटेक स्टार्ट हुआ, फिर एडटेक इज बूमिंग राइट नाउ, यू नो। सो इसमें बहुत सारे और टेक्निकलिटीज हैं, सो मैं एक वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। हर्षंकित, कैन यू प्लीज टू द नेक्स्ट स्लाइड? नेक्स्ट स्लाइड। हेलो, हाँ। सो नेक्स्ट स्लाइड इज इंडस्ट्री ओवरव्यू। मैंने जो बोला तुमको, जिस इंडस्ट्री में तुम एंटर हो रहे हो अब, सो उसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करंट मार्केट का कंडीशन क्या है, whether it is declining or growing market, की प्लेयर्स कौन कौन है। अब मैं फूड डिलीवरी में जाऊंगा, कौन कौन से की प्लेयर्स है, स्विगी है, जोमेटो है, उबर ईट्स है। ई कॉमर्स में जाऊंगा, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, कौन कौन से की प्लेयर्स है, वो एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोइंग मार्केट है कि नहीं, वो एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रेंड्स क्या है मार्केट में, वो एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट भी एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट मतलब गवर्नमेंट के कोई रेगुलेशंस आ गए, कुछ टैक्स का नॉर्म आ गया जिससे तुम्हें इम्पैक्ट हो सकता है तुम्हारे स्टार्टअप को, उसको उसको टेक इनटू कंसिडरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो नेक्स्ट स्लाइड। देन customer segmentation. Customer segmentation is basically breaking down the demographics of customers on the basis of like factors like income, gender, location, age. उसमें साइकोग्राफिक्स भी आता है, लाइक कस्टमर बिहेवियर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कस्टमर बिहेवियर कैसा है, लाइक वो प्राइस सेंसिटिव है, हेल्थ कॉन्शियस है, टेक सेवी है, बाइंग पैटर्न्स क्या है, बहुत ज्यादा खर्चे, बहुत कम खर्चते हैं, ऐसा। सो on those factors you basically segment your customer. So यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, प्राइमरी ऑडियंस। अगर तुम कुछ भी स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, उसका प्राइमरी ऑडियंस हो सकता है चिल्ड्रन एज बिटवीन एक्स एंड वाई। यहाँ पे एक्स एंड वाई ऑब्वियसली कुछ आर्बिट्ररी वैल्यूज होंगे। सेकंड ऑडियंस हो सकते हैं पेरेंट्स, हो सकते हैं स्कूल, हो सकते हैं एडुकेटर्स, हो सकते हैं। सो या इसके बाद वाला स्लाइड। सो नाउ वी आर गेटिंग इनटू सम टेक्निकलिटीज। 3 टर्म्स आते हैं यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कौन कौन हेल्प प्राइज में पार्टिसिपेट करना है, सभी कर रहे हैं। कौन कौन कर रहा है? बस रजिस्टर कर दिए भैया। So when you will be preparing a pitch deck for your startup idea, you have to mention these points. Okay, market analysis करना, फिर SWOT analysis करना बहुत इंपॉर्टेंट है। So तुम्हारा मार्केट का साइज बाहर निकालना, टेम बाहर निकालना। अच्छा भैया, मेरे को एक डाउट है। ओके, अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है क्या? हर्षांकित ओपन है ना?
Yes, yes, it's open. It's अच्छा, extended मेरा that. को एक It will डाउट है close on लाइक 25th of December, I hope. अच्छा अच्छा Am I right, Pushpendra? हाँ, the registration has been extended till 25th. ओके, तो मेरा एक अभी डाउट है कि मेरे पास आइडियाज है, उन्हें पिच करने के लिए पिच डेक भी मैं रेडी कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पास अभी कोई प्रॉपर मॉडल नहीं है, जैसे टू शो का समथिंग, जैसे कोई प्रोटोटाइप नहीं है सॉफ्टवेयर या तुम्हारे पास, वेबसाइट वगैरह। प्रोटोटाइप नहीं है प्रोटोटाइप नहीं तुम्हारे है. पास। हाँ, प्रोटोटाइप नहीं है मेरे पास। ठीक है, इनिशियली यू कैन स्टार्ट, ठीक है, इनिशियली यू कैन स्टार्ट, फिर तुम्हारा आइडिया के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा प्रोटोटाइप कितना डाइवर्स है। अगर पकड़ लो तुम्हारा आइडिया कुछ रिलेटेड टू लाइक एआई वीआर ये सब है, तो दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स, तो उनका एग्जीक्यूशन बहुत डिफिकल्ट होता है। पर ऑन द सिमिलर पेज तुम्हारा अगर बेसिकली बहुत बेसिक टाइप का कुछ बेसिकली है, जहाँ पे प्रोटोटाइप बनाना इजी है, सिर्फ एक नंबर वेबसाइट होगा या समथिंग लाइक दैट, ठीक है, तो वहां पे बेसिकली लाइक वी कैन रियली हेल्प यू इन मेकिंग योर प्रोटोटाइप रियली फास्ट। ठीक है, सो डिपेंड करता है तुम्हारा आइडिया कैसा है, क्या है। तुम रजिस्टर करो, तुमको डेडिकेटेड मेंटर्स अलॉट हो जाएंगे, एंड फिर बेसिकली विद द हेल्प ऑफ योर मेंटर्स तुम बेसिकली अपना लाइक प्रोटोटाइप कैसे क्या करोगे नहीं करोगे, दैट दे विल हेल्प यू एंड गाइड यू इन योर प्रोसेस। And one more thing, तुम लोग को टाइम बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो यू कैन डू दैट प्रोटोटाइपिंग का पार्ट भी, कि प्रोटोटाइप को तुम एक एक्चुअल वर्किंग मॉडल में ला सकते हो। ठीक है, और अभी तो मैं इतना बताऊंगा कि लाइक अभी वेबसाइट बनाने के लिए लिटरली लाइक मतलब उतना झमेला है नहीं। ठीक है, इफ यू इवन डोंट वांट टू कोड, देयर आर मल्टीपल नो बेसिकली कोड। वेबसाइट, और हाँ देयर आर मल्टीपल वेबसाइट जहाँ पे जस्ट बेसिकली यू कैन जस्ट सिलेक्ट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप थिंग्स एंड टू मेक योर वेबसाइट। तो तुमको तो प्रोटोटाइप बनाना है, तुमको फुल प्लेजेड अपना वेबसाइट इनिशियली तो शो नहीं करना है। तो जब प्रोटोटाइप बना रहे हो तो यू कैन इवन यूज दोस थिंग्स टू बेसिकली अपना एक मोटा मोटी लाइक वेबसाइट कैसे क्या बिल्ड कर सकते हो, एक मोटा मोटी चीज तुम उस सब एप्स के थ्रू भी या उस सब वेबसाइट के थ्रू भी बना सकते हो। फिर जब तुम लेटर स्टेज में स्केल करोगे या ग्रो करोगे, तब तुम फुल फ्लेजेड टेक में आ सकते हो, एंड वहां पे भी तुम लोगों को आईआईसी से पूरा पूरा गाइडेंस मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इस पे। इवन प्रोटोटाइप कैसे बनेगा, कैसे बनाना पड़ता है, इस सब के ऊपर भी लाइक अपकमिंग डेज में देयर विल बी सेशंस, सो नो वरीज ऑन दैट बिहाफ। ओके ओके, थैंक यू भैया। और ट्राई करना जो आइडियाज तुम ला रहे हो फ्यूचर में वो कंटिन्यू करो, ऐसा ही नहीं कि हेल्प डेस्क के बाद खत्म हो गया। ठीक है, ओके ओके, श्योर श्योर। अच्छा, वी हैव अनदर डाउट, प्लीज प्लीज मैम, प्लीज यू कैन अर्का नंदिनी। और कौन नंदिनी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। না দাদা, আমার কোনো কোয়েশ্চেন নেই, হয়তো হ্যান্ড রেজ করেছিলাম আগে, ওটা হয়তো আমার हाँ देन यू Enter कैन on कर। लो, हाँ हाँ बस बस चलो। ठीक है, okay, so I was discussing TAM. So TAM is basically the total addressable market. Serviceable accessible addressable market is SAM and serviceable obtainable market is SOM. So basically है क्या ये लोग? So मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ तुम लोगों को। वैसे सेमेस्टर एग्जाम्स आ रहे हैं ना, so सेमेस्टर एग्जाम्स कब है? जनवरी में है शायद। सो सपोज एक डिपार्टमेंट है जिसका बैच साइज है 120। ओके, सो उस बैच में तुम एक कोर्स बेचने जा रहे हो, वहाँ पे बहुत सारे अनप्रिपेयर स्टूडेंट्स हैं जिनको लग रहा है पास नहीं हो पाएंगे वगैरह वगैरह। तो तुम एक कोर्स बेचने जा रहे हो, कुछ भी हो सकता है प्राइस कोर्स का। उस कोर्स का मोटो है लाइक इफ यू अटेंड दिस कोर्स मैन्युअली देन यू विल गेट अ गुड मार्क्स एंड यू विल डेफिनेटली पास योर एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम्स। सो तुम जब जाओगे कोर्स लेके, तो तुम्हारा टोटल एड्रेसेबल मार्केट कौन सा होगा? कोई बोल सकता है यहाँ पे? यू आर गोइंग टू सेल अ कोर्स। भैया मैं हाँ, बोलो बोलो। भैया the target audience is the students, major all the students 120 में of 120 होगा तुम्हारा 10 या फिर उससे कुछ डिफरेंट होगा? नहीं नहीं 120 नहीं, मतलब ऑल द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो सेमेस्टर एग्जाम के लिए रजिस्टर मतलब जा रहे देने। मैंने बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन किया। तुम कौन से डिपार्टमेंट भैया से हो? मैं बीबी भैया डिपार्टमेंट। हाँ, सपोज तुम्हारे बैच में 120 स्टूडेंट्स है, तुम्हारा कोर्स का टारगेट क्या है? लाइक इफ यू अटेंड दिस कोर्स यू विल डेफिनेटली पास योर एग्जाम्स विद अ गुड ग्रेड्स। ठीक है, हेलो भैया, हाँ हाँ बोलो। according to me, my target audience should be who have fear to fail. एग्जैक्टली,
तुम टॉपर्स के पास नहीं जाओगे। पहली बात, जो जिन्होंने 50% सिलेबस खत्म कर लिया उनके पास नहीं जाओगे। सो वहां पे बहुत सारे लोग एक्सक्लूड हो गए। सो इट विल बी लाइक 25%, 30% ऑफ द whole 120 batch size. Okay, so that 30-40 people will be your TAM. Okay, ठीक है, समझ गया? Yes, और do you have না any আই question? থিঙ্ক ওর ভুল করে হ্যান্ড রেজ ছিল और he has না না already আমার like ডাউটটা satisfied ক্লিয়ার the হয়ে গেল। डाउट क्लियर ठीक हो है, गया राइट चलो सबको टैम समझ में आ गया या फिर मैं और एक एग्जांपल से समझाऊं? टैम सैम और सम, ठीक है, मैं समझाता हूँ और एक एग्जांपल। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। ओके, ईवीज। सो ईवीज अगर हम देखने जाए तो ईवीज का तीनों मैं समझा रहा हूँ, टैम सैम और सोम। ईवीज का जो ग्लोबली मार्केट है वो $100 बिलियन का है, ठीक है, $100 बिलियन का है टोटल एड्रेसेबल मार्केट। मतलब जितने कस्टमर्स अगर सब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स खरीदे जो कस्टमर्स है, उनका टोटल जो रेवेन्यू आएगा एक ईयर में वो $100 बिलियन का है, ठीक है। अब सैम क्या है? सैम है सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट। ओके, सो अगर मैं एक स्टार्टअप खोलना चाहता हूँ, जो मैं एक कंपनी खोलना चाहता हूँ, एक कंपनी है जो ईवी सेल करेगी, लेकिन उसका सर्विस सिर्फ अर्बन होगा, है ना। तो अगर सर्विस सिर्फ अर्बन सिटीज में रहा तो मार्केट वुड डिडक्ट टू $14 बिलियन। ओके, सो दिस $14 बिलियन इज सैम, समझ गए ना। द प्रायर $100 बिलियन वाज टैम। अब जो $14 बिलियन है वो सैम है, ठीक है। अर्बन में टोटल मार्केट था $100 बिलियन का। अब मेरा सर्विस सिर्फ अर्बन सिटीज में, मैं सबर्ब्स में नहीं जाऊंगा, मैं रूरल में नहीं जाऊंगा। सो मार्केट डिडक्ट होकर आ गए $14 बिलियन। ये होगा मेरा कंपनी का सैम। सोम क्या होगा? अगर मैं डिसाइड करूँ लाइक उस सैम में से मैं 5% को दूंगा जो सर्विस, लाइक मुंबई एंड बेंगलुरु में सिर्फ मैं सर्विस प्रोवाइड करूंगा, मेरे कंपनी का स्टोर होगा वहां पे, then it will deduct to $700 million. So $700 billion will be my SOM. समझ गया ना? क्लियर है? कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। Debrado, you can just once check your inbox please. Yeah. Okay. I guess you don't have any questions. So let us move to the next slide. ट्रेंड एंड फोरकास्ट मैंने पहले ही बता दिया था, मार्केट में क्या ट्रेंड हो रहा है। लाइक जब पेटीएम का एग्जांपल ले लेते हैं। पेटीएम का जब बूम आया था, एग्जैक्टली किस टाइम पे आया था किसी को पता है? ऑनलाइन पेमेंट का बूम किस? नहीं, इसके भी पहले एक था, जब पेटीएम वाज द लाइक मेजर प्लेयर्स इन द ऑनलाइन पेमेंट सेक्टर। When UPI was introduced? No. क्या भैया क्वेश्चन को रिपीट करना? ऑनलाइन पेमेंट में जब बूम आया था वो किस टाइम पे, जो सर्ज आया था किस टाइम पे आया था? फर्स्ट स्पाइक वाज व्हेन? जब भारत पे लॉन्च हुआ था, आई गेस। नो, 2014 के अराउंड। डिमोनेटाइजेशन। एग्जैक्टली, जियो when Jio was introduced. ना भैया डिमोनेटाइजेशन। हाँ, डिमोनेटाइजेशन के वक्त पेटीएम में सबसे बड़ा मार्केट में सर्ज आया। सो वो लोग ट्रेंड एनालाइज कर रहे थे कि कैशलेस पेमेंट का जमाना आने वाला है, ट्रेंड में आ रहा है, सो दे वर इन्वेस्टिंग ऑन इट, ठीक है। सो ऐसे ट्रेंड को एनालाइज करना वुड बी बेनिफिशियल फॉर एनी स्टार्टअप फाउंडर, क्योंकि ट्रेंड में रहोगे तो स्टार्टअप चलेगा, नहीं तो नहीं भी चल सकता है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड। So we are coming now to the SWOT analysis. Yeah. So SWOT analysis, it is also very important. So SWOT analysis में first जो S होता है वो होता है strengths के लिए, W weaknesses के लिए, opportunities के लिए O होता है, और T के लिए threats. Okay. So strengths, weakness, opportunities, threats ये क्या है? Basically स्ट्रेंथ्स, एक कंपनी का स्ट्रेंथ्स क्या क्या हो सकता है? कोई बोल सकता है मुझे? क्या क्या इंटरनल एडवांटेज हो सकते हैं एक बिजनेस में?
HR हो सकता है। कंपनी good, ब्रांड वैल्यू, हाँ ब्रांड वैल्यू एक हो सकता है, गुड पॉइंट। और क्या हो सकता है? इन्वेस्टर्स, हाँ गुड फंडिंग हो सकता है। और क्या हो सकता है? टारगेट ऑडियंस, Great fundamentals. हाँ ग्रेट फंडामेंटल्स हो सकता है, लेस डेट है, ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है फंडिंग में, बूटस्ट्रैपिंग भी है थोड़ा, बहुत सारा पॉइंट्स हो सकता है। ब्रांड रिकॉग्निशन हो सकता है, जो प्राइस होता है, जो पर टिकट प्राइस होता है, पर यूनिट प्राइस होता है, वो अगर कम हो तो वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्वालिटी अगर अच्छा हो, इट इज ऑल्सो ए वेरी गुड स्ट्रेंथ। एंड कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर रिटेंशन इज ऑल्सो ए वेरी गुड स्ट्रेंथ। ओके, फिर आते हैं वीकनेस में। वीकनेस में होता है तुम्हारा लिमिटेड प्रोडक्ट रेंज। एक स्नैपडील का एग्जांपल बोला था हमने, उसका बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफरिंग्स जो थे कंपेयर टू लार्जर ऑडियंस, लाइक कंपेयर टू लार्जर ई कॉमर्स, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बहुत कम थे। तो स्नैपडील का वो तो था एक पॉइंट। डिपेंडेंस ऑन सिंगल मार्केट, एक ही मार्केट में ज्यादा डिपेंडेंसी, अगर वो मार्केट डिस्टर्ब हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये एक है। लैक ऑफ इनोवेशन है, लाइक R&D सेक्टर अच्छा ना हो, तुम प्रोडक्ट्स में इनोवेशन नहीं कर रहे, सर्विसेज में इनोवेशन नहीं कर रहे, तो डाउन जाएगा तुम्हारा स्टार्टअप। ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज भी है। ये है वीकनेसेस। अपॉर्चुनिटीज क्या है, लाइक अगर तुम्हारा टैम मिडिल क्लास में, सपोज तुम एक स्टार्टअप कर रहे हो, उसका टैम मिडिल क्लास में फोकस्ड है, सो अगर उस कंट्री का या फिर उस एरिया का जहाँ पे तुम सेंट्रेड हो, वहां पे राइजिंग मिडिल क्लास पॉपुलेशन हो, उनका इनकम राइज हो रहा है, मिडिल क्लास पॉपुलेशन भी राइज हो रहा है, देन इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ठीक है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अगर हो रहा है, मैंने टेक का एग्जांपल दिया था, वो भी एक अपॉर्चुनिटी था। लाइक अगर गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ले लिया कुछ, लाइक स्टार्टअप इंडिया का जो इनोवेशन मैंने इनिशिएटिव था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। लाइक किसी एक सेक्टर में टैक्सेस कम कर दिए, दैट इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। So these are the opportunities. Then are threats. Threats में होता है like competition. Competition like एक बहुत saturated market है, उसमें तुम घुसना चाहते हो, that is a big threat to your startup. Okay. वहाँ पे sustain करना will be very hard for you. Economic downturn. कुछ मार्केट में तुम जा रहे हो, वहाँ पे पैसा, it is a declining market. Like printables जो थे, कन्वेंशनल प्रिंटेबल्स जो थे, वो डाउन जा रहा है अभी। सो इफ इट इज नॉट ए ग्रोइंग मार्केट, देन यू शुड नॉट एंटर। मैंने पहले भी बोला था। रेगुलेटरी चेंजेस, जैसे बोला टैक्सेस बढ़ गए, कुछ इनिशिएटिव नहीं हो रहा है। क्रिप्टो में जैसे टैक्सेस बढ़ गए, तो ब्लॉकचेन में जो स्टार्टअप्स थे वो ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ग्रो रहे हैं, किंतु इंडिया में बहुत कम ग्रो रहे हैं। ठीक है। भैया एक्चुअली ब्लॉकचेन का जो स्टार्टअप था वो फिनटेक का स्टार्टअप है ना, फिनटेक डोमेन में आता है हाँ आई हाँ गेस। तो वो इंडिया में Not आई गेस all, बहुत कम है। not all blockchain startups are सारे हैं। fintech startups. अच्छा अच्छा सारे फिनटेक के रिलेटेड नहीं है। ब्लॉकचेन्स का और भी बहुत सारे यूजेस है। अगर तुम लोग कंप्यूटर साइंस लेके इन फ्यूचर पढ़ोगे, तुम लोग को पता चलेगा क्रिप्टोज में कि भी तो है। ब्लॉकचेन, हाँ एग्जैक्टली। तो ब्लॉकचेन का जो मेन फंडा है, मैं हल्का से बता रहा हूँ, ठीक है। उनका मेन ये है कि कोई एक पर्टिकुलर जगह में कोई चीज स्टोर होके नहीं रहेगा, राइट। दे डोंट हैव ओनली वन रिपोजिटरी। उनका रिपोजिटरी थ्रू आउट द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है। या अगर सपोज मेरे पास पकड़ लो एक डाटा है, ठीक है, IIC का डाटा है, राइट। तो वो अगर कोई एक प्लेस में स्टोर रहेगा, तो क्या होगा ना, अगर बाई चांस उस जगह में कुछ हो गया, तो वो बेसिकली तो खत्म हो गया, फिर तो डाटा भी सब चला जाएगा, सब एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड, राइट। बट अगर मैं वही बेसिकली जो IIC का जो बेसिकली डाटा है, वो जितना भी IIC का मेंबर्स है, उन सब में अगर मैं सबको बेसिकली लाइक डिस्ट्रीब्यूट करके रखूं, तो अगर कहीं पे भी कुछ डाटा चला भी जाए, तो ओवरऑल बहुत ज्यादा डैमेज हम लोग को डील नहीं करना पड़ेगा। तो इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ब्लॉकचेन डिपेंडेंट है, और इसी के ऊपर फाइनेंस भी बहुत डिपेंडेंट है। क्योंकि फाइनेंस का मेन ये मुद्दा है कि अगर फाइनेंस का मेन मुद्दा है कि तुमको डाटा चाहिए, राइट। अगर तुम्हारा डाटा चला गया तो तुम्हारा पैसा जाएगा, राइट। तो उन्होंने अपना डाटा को बेसिकली डिसेंट्रलाइज करके, दैट्स व्हाई हाउ बेसिकली फाइनेंस इज इनकलकेटिंग दैट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इनसाइड देम. So it's not only dependent to finance, but yes, finance is a major player in terms of blockchain. Yeah, I recently just viewed the blockchain statistics and the main मतलब कोलैबोरेट फाइनेंस सबसे ज्यादा करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी Yes, एक्चुअली। yes, he's a major player. It's a major player. Correct, correct. मेजर प्लेयर, यस।
मेरा पॉइंट वो था, अगर किसी भी सेक्टर के ऊपर ज्यादा टैक्सेस लग रहे हैं एक पर्टिकुलर कंट्री में, सो दैट इज अ थ्रेट टू योर स्टार्टअप। मेरा पॉइंट वो था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। Looks good. We can continue. Yeah, competitive अच्छा, landscape. Go on. okay, okay. So competitive analysis is another important aspect of any startup. So mainly there are two types of competitors: direct competitors, indirect competitors. डायरेक्ट कंपटीटर्स वो होते हैं लाइक जो तुम्हारे तरह ही सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विस दे रहे हैं, लाइक जोमेटो एंड स्विगी जो सर्विस दे रहे हैं सेम है, Amazon, फ्लिपकार्ट, सर्विस सेम, लेकिन डिफरेंसेस आर देयर बट टिपिकली द टर्म इज सेम। ओके, सो वो लोग हैं डायरेक्ट। इनडायरेक्ट कौन से हैं? लाइक जो तुम्हारी सॉल्यूशन का कोई ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फास्ट फूड चेन वर्सेस मील डिलीवरी सिस्टम। ओके, उनका है लाइक कार मैन्युफैक्चरर वर्सेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ओके, कार मैन्युफैक्चरर दे रहा है कार, उसका ऑल्टरनेटिव तुम्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे रहा है। ठीक है, लाइक सेम सॉल्यूशन नहीं है लेकिन तुम्हारे सॉल्यूशन का ऑल्टरनेटिव है। लाइक जिम हो गया, जिम का बहुत चेन चलता है अभी, लेकिन होम वर्कआउट ऐप जो है वो तुमको ऑल्टरनेटिव दे रहा है कि जिम ना जाके भी तुम घर में वर्कआउट कर सकते हो। Is it replacing gym? No, but it is giving an alternative. Okay, so next slide please. जब तुम हल प्राइस में जाओगे ना, तो तुम्हें अच्छे से एक कंपैरिजन करना पड़ेगा तुम्हारे जो स्टार्टअप है और तुम्हारे जो कंपेटिटर्स है उनका। सो ऐसा एक टेबल बनाना है तुमको, जहाँ पे तुम डिफरेंट एस्पेक्ट्स लाइक प्रोडक्ट और सर्विस, तुम्हारे कंपेटिटर्स क्या दे रहे हैं, तुम क्या दे रहे हो, मार्केट शेयर क्या है उनका, तुम्हारा क्या होना चाहिए या फिर तुम्हारा क्या है, स्ट्रेंथ उनका क्या है, तुम्हारा क्या है, वीकनेस उनका क्या है, तुम्हारा क्या है, प्राइसिंग जो है उसमें क्या डिफरेंसेस है उनके, तुम्हारा क्या डिफरेंस है, कस्टमर बेस कैसे डिफरेंट है। ऐसे तुम्हें एक टेबल बना के देना है हर प्राइस में, वो तुम्हारे पॉइंट्स ऐड करेंगे। सो दीस आर द की इनसाइट्स ऑफ कंपेटिटिव एनालिसिस। सो नेक्स्ट पार्ट भैया, ओ सॉरी, हाँ, तो कंपेटिटिव एनालिसिस में बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। यूएसपी जिसे बोलते हैं, यूएसपी इज लाइक कोई तुम्हारा प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा। ओके, तुम ऐसा क्या दे रहे हो तुम्हारे कंपटीटर्स जो नहीं दे रहे। ठीक है, लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, टाटा का एक इनिशिएटिव था, सबको पता है, टाटा नैनो था। उसका यूएसपी क्या था, किसी को मालूम है? मोस्ट अफोर्डेबल कार, हाँ, मतलब 1 लाख वर्ल्ड्स एटलीस्ट मोस्ट, हाँ, वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल कार इट वाज 99,000 के अराउंड था। इस प्राइस रेंज में कोई नहीं दे रहा था। अनफॉर्चुनेटली इट फेल्ड, बट वो है यूएसपी, लाइक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, लाइक तुम क्या डिफरेंट कर रहे हो तुम्हारे कंपटीटर से, दैट इज यूएसपी। तो कंपेटिटिव एनालिसिस करने से तुम्हें अपना यूएसपी तो मिल जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट, किसी को आई गेस 4 स्लाइड्स 5 स्लाइड्स हो गए हैं, सो किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, यूर फील फ्री टू आस्क। If there are no questions, then give us a thumbs up. अच्छा, there is a question. There is a question. There is a question. हाँ, पूछो पूछो। Okay. वॉकर, वकार ने हैंड्स डाउन कर दिया, तो आई थिंक देयर आर नो ही, क्वेश्चंस आई गेस। या है क्या, वकार है क्या, तो पूछ सकता सर। नहीं नहीं, वो बाय मिस्टेक हो गया था। अच्छा, चलो किसी को चलो। भी कोई question? ठीक है, ओके, ठीक है, चलो देन नाउ फ्रॉम हियर आई विल टेक ऑन। ठीक है, चलो। अच्छा, अब लाइक बाई फार हम लोग ने बहुत सारा टेक्निकलिटीज पढ़ा। ठीक है, समझा, टैम सॉम सैम बहुत कुछ समझा हम लोग ने। अब आते हैं एकदम फंडामेंटल्स पे। ठीक है, कि अगर बिजनेस करना है तो उसका दो इंपॉर्टेंट मोर देन लाइक पोर्शंस होगा, एक होता है मार्केटिंग और एक होता है सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स आर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कनेक्टेड। अगर तुम्हारा मार्केटिंग अच्छा है, तुम्हारा सेल्स बढ़िया होगा। अगर तुम्हारा सेल्स बढ़िया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा मार्केटिंग सही चल रहा है, राइट। अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग अप्रोच। तो यहाँ पे कुछ अप्रोचेस मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, जैसे कि डिजिटल प्रेजेंस एंड कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है, तुम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट बनाओ और जहाँ पे अपना लाइक जो प्रोडक्ट है तुम्हारा उसको बेसिकली प्लग इन करवाओ। ठीक है,
पकड़ ले तुम लोग ऐसा एक वेब सीरीज बनाया, ठीक है, जिसमें बेसिकली पकड़ लो जिसमें सबके बहुत बढ़िया बढ़िया बियर्ड्स हैं, ठीक, बहुत बढ़िया बढ़िया, सबके बहुत बढ़िया बढ़िया बियर्ड्स हैं। तो वहां पे तुम अपना जो प्रोडक्ट है, जहाँ पे तुम शेविंग पकड़ लो, तुम शेविंग क्रीम या लाइक शेविंग का तुमको जिलेट तुम्हारा कंपनी है, राइट। तो अगर तुमको अपना प्रोडक्ट को वहां पे घुसाना है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, तुम वहां पे बेसिकली जब भी जिन लोगों का अच्छा अच्छा बियर्ड्स है, तुम एक दो बेसिकली शॉर्ट्स ऐसा शो कर सकता है जहां पे वो जिलेट से अपना दाढ़ी बना रहा है, ठीक है। ऐसा हम लोग बहुत सारा मूवीज ये सब में देखे भी है, राइट। सो दिस इज हाउ बेसिकली यू मेक योर डिजिटल प्रेजेंस। और भी रहता है कि तुम्हारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट्स हम लोग ने बनाया और वहां पे अपना प्रोडक्ट्स को प्लग इन करवाया। तो दैट इज ऑल्सो हाउ थिंग्स वर्क, राइट। सेकंड होता है सोशल मीडिया एंगेजमेंट, जो कि मैंने बोला, ठीक है, कि तुमको बेसिकली अपना जो यूजर्स है उनके साथ सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा एंगेज रहना पड़ेगा, बाय आस्किंग डिफरेंट विटी क्वेश्चंस या उनसे अच्छा अच्छा सजेशंस मांगना। जैसे रिसेंटली एक बार क्या हुआ था, जोमेटो ने कुछ सजेशंस का कुछ हुआ था और एक बंदे ने बोला था कि बहुत सारा जो ऑर्डर्स कैंसिल हो जाता है तो वो सब वेस्ट हो जाता है। तो उसका हम लोग एक इनोवेटिव सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि जो भी ऑर्डर कैंसिल होगा तो उसको एक बहुत मिनिमल प्राइस में फ्लिपकार्ट मतलब जोमेटो उस समय पे अपना जो भी उसके अराउंड में उसके एरिया में है उनके पास उसका एक बेसिकली लाइक पॉपअप चला जाएगा कि सर दिस प्रोडक्ट इज अवेलेबल एट अ वेरी लो कॉस्ट एट दिस रेट, ठीक है, इफ यू वांट टू अवेल इट यू कैन अवेल इट, राइट। सो ऐसे करके क्या हो गया, तुम्हारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बेसिकली तुम्हारा प्रोडक्ट वेस्ट भी नहीं हो रहा है और एक मिनिमल प्राइस में तुम उसको बेच भी रहा है, जिससे तुम्हारा बेसिकली लॉस भी काफी हद तक कम रहा है, राइट। तो दिस इज हाउ बेसिकली, और ये आइडिया जब जोमेटो को मिला, देन जोमेटो का जो फाउंडर है दीपिंदर, तो उन्होंने बेसिकली दैट पर्सन को जॉब भी ऑफर किया था। सो दैट्स हाउ थिंग, तो यू आर बेसिकली एंगेजिंग विथ योर कस्टमर्स ऑनलाइन, ठीक है, दैट्स हाउ बेसिकली यू मेक योर सोशल मीडिया एंगेजमेंट विद द पर्सन, राइट। आफ्टर दैट देन कम्स द ईमेल मार्केटिंग। अब तुम लोग यहाँ पे हम लोग कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ है, तुम लोगों को पता चलेगा कि आफ्टर फ्यू टाइम ईमेल का बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाएगा, तुम लोग का हर एक चीज तुम लोग का ईमेल में ही आएगा। तुम्हारा एग्जाम्स कब होगा, तुम लोग का क्या प्लेसमेंट का कैसा क्या चलेगा, सब तुमको ईमेल में मिलेगा। तो ये ईमेल का जोन में ना बहुत सारा कंपनीज तुमको ईमेल्स भेजेगा, स्पेशली एडटेक का रिलेटेड कंपनीज, एजुकेशन रिलेटेड कंपनीज, वो लोग तुमको बहुत सारे ईमेल्स भेजेगा। तुम यहाँ पे इंटर्नशिप ले सकते हो, तुम यहाँ पे कोर्स ले सकते हो, वगैरह वगैरह, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, राइट। तो वहां पे विद द हेल्प ऑफ ईमेल्स बेसिकली तुम ईमेल्स का कोल्ड मेल्स भेज सकते हो, वहां से अपना बेसिकली टारगेट कस्टमर्स को टारगेट करके वहां से यू कैन पिक योर कस्टमर्स आउट देयर। So that's how email marketing works. After that comes search engine optimization. अब ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, एसईओ, ये है कि जब तुम्हारा पकड़ लो लाइक सपोज तुमने सर्च किया गूगल में कि मेरे को शर्ट खरीदना है, बाई शर्ट, राइट। तुम्हारा पहले में ही देखना कि मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, Amazon, these are the first basically companies to come in the first, right? पर वो लोग फर्स्ट में क्यों आता है, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज है, देयर इज लाइक मल्टीपल कंपनीज जो लोग भी बेसिकली शर्ट्स बेच रहा है ऑनलाइन अपना प्लेटफॉर्म में, पर वो लोग ऊपर क्यों नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूजेज है। जितना ज्यादा तुम बेसिकली कोई चीज को सर्च करेगा विद द हेल्प ऑफ अनदर कीवर्ड्स, पकड़ लो शर्ट्स इन फ्लिपकार्ट या सर्च इन मिंत्रा, ठीक है, जितना तुम्हारा ये सर्चिंग ज्यादा हो गया, जब नेक्स्ट टाइम कोई पर्सन सिर्फ शर्ट भी सर्च करेगा ना, यही तो ज्यादातर ऑडियंस सर्च के साथ फ्लिपकार्ट या मिंत्रा को जोड़ा है, तो वहां पे वही लिंक्स पहले अपीयर करेंगे। तो दिस इज हाउ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वर्क। ये बहुत ही डेंस टॉपिक है, तुम लोग को अगर इसके बारे में और जानना है देन बेसिकली वी कैन हैव अ सेशन रिगार्डिंग इट आफ्टरवर्ड्स, या तुम लोग गूगल कर सकते हो, यूट्यूब पे भी जा सकते हो, यू कैन गेट अ मोर डिस्क्राइब्ड आंसर्स देयर आल्सो। आई जस्ट गिव अ ओवरऑल समरी ऑफ हाउ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वर्क्स। इसके बाद पेड एडवर्टाइजिंग, जो तुम्हारा गूगल तो यूट्यूब में जब तुम वीडियोस देखते हो तो बीच बीच में तुम्हारा एड्स आता है, राइट। तो ये सब जो एड्स आता है, ये सब एड्स बेसिकली चलाने के लिए जो कंटेंट क्रिएटर है उनको तो पैसा मिल रहा है, बट यूट्यूब को बेसिकली ये सब एड्स लगाने के लिए वो जो कंपनीज, पकड़ लो तुम्हारा फॉग का कोई एड है, सपोज फॉग का जो डीओ है उसका एड है, तो फॉग विल पे यूट्यूब, राइट। पकड़ लो फॉग यूट्यूब को बेसिकली 1000 रुपया दिया और फिर यूट्यूब ने बेसिकली 10 कंटेंट क्रिएटर्स को अपना उस एड को लगाने के लिए 50-50 करके दे दिया। तो बेसिकली 10 कंटेंट क्रिएटर्स को 500 मिल गया, यूट्यूब का 1000 मिल गया, 500 उसने दे दिया, तो 500 यूट्यूब का प्रॉफिट, कंटेंट क्रिएटर्स का भी प्रॉफिट, और वो जो कंटेंट क्रिएटर जिन लोग उसका जो ऑडियंस है, तो वो जब बेसिकली उस एड को देखेंगे तो मे बी 100 जन में से अगर 20 जन भी खरीद रहा है, तो बेसिकली दे आर द कस्टमर्स हु आर एक्वायर्ड विद द हेल्प ऑफ द पेड एडवर्टाइजिंग, राइट। एंड ये पेड एडवर्टाइजिंग सबसे मेजर रहता है, मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स डू पेड एडवर्टाइजिंग फॉर कस्टमर एक्विजिशन।
इसके बाद आता है इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप्स, जो कि तुम्हारा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, उनके साथ तुम पार्टनरशिप करो, उनके साथ तुम उनको बोलो अपना सोशल मीडिया हैंडल्स में अपना जो भी प्रोडक्ट्स है उसको बेचने, या लाइक यूट्यूब में भी अगर बोलो देयर आर डिफरेंट टेक चैनल्स, टेक्निकल गुरुजी है, टेक बर्नर है, बहुत सारे ये सब चैनल्स है, ये सब बहुत सारा फोन का रिव्यू करते हैं, ये सब करते हैं। तो इनमें से ज्यादातर जो फोन रिव्यूज होता है वो पेड होते हैं, उनको कंपनीज ही बेसिकली फोन प्रोवाइड करते हैं और बोलते हैं आप रिव्यू कीजिए, राइट। और जब वो लोग रिव्यू करते हैं उसके आपके लिए कंपनी उनको पे करता है, और अगर उन लोग ने उस प्रोडक्ट को अच्छे से रिव्यू दिया कि बोला हाँ इसमें बहुत बढ़िया 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 टेक्नोलॉजी है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, तो बीइंग अ यूजर और बीइंग अ व्यूअर ऑफ दैट बेसिकली चैनल, तुमको लग रहा है कि हाँ ये फोन तो बढ़िया है, अगर मेरे को फोन का नेसेसरी है आई कैन लुक फॉर दिस फोन। एंड दिस इज हाउ बेसिकली इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप्स वर्क इन जनरल। ये हो गया मार्केटिंग का पार्ट। नाउ आता है सेल्स का पार्ट में, ठीक है। सेल्स में पहले आता है लीड जनरेशन एंड क्वालिफिकेशन। पहले तुमको बेसिकली अपना लीड्स निकालना पड़ता है कि कौन कौन मेरा, जो कि मेजर पार्ट होता है कस्टमर एक्विजिशन का, कि कौन कौन मेरा एक्चुअल कस्टमर्स बन सकता है, ठीक है, और उनपे जाके उनको करेक्ट करेक्ट चीजें बेसिकली डिलीवर करना, ठीक है। सपोज बेसिकली लाइक हाउ गूगल रियली वर्क्स, ठीक है। तुम गूगल में जो भी सर्च कर रहा है, ठीक है, उसको उसी बेसिकली सिमिलर टाइप ऑफ चीज तुमको गूगल के इन फ्यूचर में एड्स में, यूट्यूब के एड्स में वही सब चीज तुमको मिलेगा, राइट। तो दिस इज हाउ लीड्स आर कनेक्टेड, राइट। तुम जो सर्च कर रहा है या तुम डे टू डे लाइफ में जो जो चीज यूज कर रहा है उसके हिसाब से तुम्हारा जो बिजनेस है वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उस हिसाब से तुमको टारगेट करते हैं। एंड दिस इज हाउ लीड जनरेशन एंड क्वालिफिकेशन वर्क्स। इसके बाद आता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जहां पे तुम्हारा जो कस्टमर ने तुमसे कोई प्रोडक्ट खरीदा, राइट, फिर उसका उसके उसके बाद उस प्रोडक्ट का रिलेटेड अगर कोई तुमको प्रॉब्लम आ रहा है, दिक्कत आ रहा है, तो उसको सर्विस प्रोवाइड करना, जो कि लास्ट पॉइंट भी है कस्टमर सपोर्ट एंड रिटेंशन। तो तुमको वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को लेके उस कस्टमर का जो भी क्वेरीज है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो, तो उसके साथ तुम्हारा जो एंगेजमेंट रहेगा, तुम्हारा जो बेसिकली बॉन्ड रहेगा, उसको अच्छे से मैनेज करना इज वेरी नेसेसरी। अगर तुम्हारा ऐसा है कि तुमने प्रोडक्ट बेच दिया, फिर लाइक तुमको फिर उस कस्टमर को उसमें प्रॉब्लम आया, एंड यू हैव नो वन इन द कस्टमर्स लाइक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट हु विल मैनेज दोस कस्टमर्स, फिर तो उसको एक गंदा एक्सपीरियंस के बाद ही वुड नेवर कम बैक, ठीक है। और मेजर मेजर बेसिकली प्रोडक्ट में एक दो प्रोडक्ट डिफॉल्ट आता ही है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो हो ही सकता है। अब वो प्रॉब्लम्स को अगर कोई कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर एड्रेस नहीं करेगा, तो वो जो कस्टमर्स है वो तो चले जाएंगे, वो बोलेंगे ये तो टट्टी प्रोडक्ट है, मैं तो इसको नहीं खरीदा नेक्स्ट टाइम, ठीक है, आई विल गो फॉर सम अदर प्रोडक्ट, आई विल लुक फॉर सम अदर प्रोडक्ट्स, अदर कंपनीज। तो ऐसे बेसिकली कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए कस्टमर रिटेंशन रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज वेरी नेसेसरी। इसके बाद आता है सेल्स फनल ऑप्टिमाइजेशन। ये बहुत बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड एक टॉपिक है, पर इसको आसान भाषा में समझाओ तो बेसिकली सपोज तुम्हारा एक प्रोडक्ट है जिसको तुमने मैन्युफैक्चर किया, फिर उसको एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने उसको बेसिकली लाइक छोटा मोटा दुकानों में भेजा, एंड फिर छोटा मोटा दुकान से तुमने उसको कंज्यूम किया। तो देयर इज अ फनल, राइट, देयर इज एवरी स्टेप में तुम्हारा कोई ना कोई है, और हर एक पर्सन कोई ना कहीं प्रॉफिट थोड़ा बहुत खा रहा है, राइट। अगर तुम अभी का मार्केट देखोगे कि कितने लोग ही रहते हैं कि जाके दुकानों में जाके अपने कपड़े खरीदते हैं, द परसेंटेज है रिड्यूस है ह्यूज मार्जिन, क्योंकि अभी जो मैन्युफैक्चरर्स है वो डायरेक्टली आते हैं और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में लिस्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि उन लोगों को बेसिकली लाइक एक बढ़िया मार्जिन भी उन लोगों का सेव हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को भेजो, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिटेलर्स को भेजो, वो जो बेसिकली फनल है वो भी तुमको ऑप्टिमाइज हो गया। तुम डायरेक्ट ई कॉमर्स से तुमको डायरेक्ट बेसिकली मैन्युफैक्चर से तुमको कस्टमर्स को मिल रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, तुम भी प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा चीप रख पा रहा है, कस्टमर्स को भी प्रोडक्ट का प्राइस चीप में मिल रहा है, तो वो बेकार जाके दुकानों में ज्यादातर नहीं खरीदेंगे, राइट। अगर ना उनको बेसिकली अपना साइज को लेकर ज्यादा प्रॉब्लम हो, या बेसिकली ट्रायल नहीं करेंगे तो नहीं खरीदेंगे, ऐसा कुछ मेंटालिटी ना हो, तो दे विल बेसिकली बाय इट फ्रॉम ई कॉमर्स, स्पेशली अस द जेनजीज, राइट। हम लोग ज्यादातर अपना शॉपिंग बेसिकली ऑनलाइन ही करते हैं, तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, राइट। बट यहाँ पे भी यू कैन डेफिनेटली डू अ ब्रेकआउट, राइट, क्योंकि जूडियो ने जैसे आया, जूडियो केम एंड बेसिकली उसने इस मार्केट को भी डिसरप्ट किया। अभी बहुत जन बेसिकली जूडियो में जाके भी कपड़े खरीद रहे जेनजीज, राइट, ऑनलाइन नहीं बाय करके, राइट। सो दिस इज हाउ बेसिकली क्यों कर रहे हैं, उनका यूएसपी क्या है, उनका यूएसपी ये है कि बेसिकली दे आर प्रोवाइडिंग ऑल प्रोडक्ट्स विद इन 1000 रुपीज रेंज, जो कि एक स्टूडेंट या बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली इजीली अफोर्ड कर पा रहा है विद अ ठीक ठाक क्वालिटी। आई वुड नॉट से इट्स अ वेरी सुपर क्वालिटी, ठीक ठाक क्वालिटी 1000 रुपया में जैसे मिलना चाहिए, बट दे आर स्टाइलिश। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। तुमको बेसिकली कोई भी मार्केट में अगर घुसना है तो यू ऑलवेज नीड टू फाइंड द यूएसपी, कि तुमको कैसे घुसना है, तुम्हारा यूनिक प्रोपोजिशन क्या रहेगा, एंड हाउ यू विल बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट इट, right? So this is how basically sales funnel optimization works and how you can basically break even in markets. इसके बाद आ गया प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। अब देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, तुम लोग को, जैसे कपड़ों का एग्जांपल है, ठीक है, पकड़ लो आई एम अ मैन्युफैक्चरर, ठीक है, और मैं बहुत हाई क्वालिटी कपड़े बनाता हूँ, ठीक है,
तो और मैं उसको 4,000 5,000 रुपया में एक एक कपड़ा बेचता हूँ, ठीक है, वन जैकेट फॉर 5,000 रुपीज, ठीक है, तो मेरा जैकेट कौन खरीदेगा? 10 जन खरीदेगा मैक्स टू मैक्स, ठीक है, क्योंकि बहुत महंगा है। तो और लेकिन मेरा प्रॉफिट उस 5,000 में 2,000 रुपया है, तो क्या हुआ, 2,000 इंटू 10 मेरा को 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, राइट। अब क्या हो गया, और एक जन आया, उसने बोला नहीं मैं तो जैकेट भाई 3,000 में ही बेचूंगा, राइट। तो 3,000 में जो जो प्रॉफिट बेच रहा है, तो वो क्या हो रहा है, तो उसको बेसिकली कॉस्ट भी 2,000 ही पड़ रहा है, तो उसका 1,000 रुपया का प्रॉफिट है, बट जी तो उसका प्राइस बहुत कम है, तो ही इज रीचिंग आउट टू अ लार्जर ऑडियंस, तो उसका प्रोडक्ट 20 जन खरीद रहा है, तो उसको भी 20 इंटू 1,000 रुपया बेसिकली 20,000 रुपया ही प्रॉफिट बन रहा है। तो दोनों आर हैविंग इक्वल प्रॉफिट, पर दोनों का प्राइसिंग का स्ट्रेटेजी आर डिफरेंट। So basically, how you will enter the market also depends upon what type of pricing strategy you are putting forward. So that also really is important for starting your business initially, right? फिर जाके फिर तुम अपना प्राइसिंग को स्टैंडर्डाइज कर सकता है मार्केट के होने में, जैसे जियो ने किया था, इनिशियली आके बहुत सस्ता कर दिया, सब कोई बेसिकली जियो पे शिफ्ट हो गया, बाकी कंपनीज बैंकरप्ट हो गए, आधे कंपनीज बंद हो गए, फिर जियो ने धीरे धीरे अपना प्राइस को स्टैंडर्ड कर दिया, अपना प्राइस को धीरे धीरे बढ़ा दिया। और एक फनी चीज भी है मार्केटिंग को रिलेटेड, इट्स ऑफन सेड जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है वो सबसे अच्छा मार्केटिंग कर सकता है। दैट इज समवॉट अदर वे इज ट्रू भी, राइट। अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम बहुत ज्यादा एड्स रन कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, प्राइस एकदम कम रख लिया, कस्टमर एक्विजिशन कर लिया, फिर जाके बेसिकली प्राइस बढ़ा लिया, तो दैट ऑल्सो वर्क्स। बट अगर तुम्हारे पास कम प्राइस है फिर भी यू कैन एंटर अ मार्केट। बेस्ट एग्जाम्पल इज फॉग। जब बेसिकली फॉग आया था उसके पहले डिओड्रेंट में सब पार्क एवेन्यू या लाइक डेनवर ये सब यूज कर रहे थे, बट फॉग ने आके देखा कि क्या है, बाकी सब में ना गैस बहुत ज्यादा है, तो हम लोग गैस के बदले उसको लिक्विड बेसिकली में प्रोपोजिशन में ज्यादा दिखा के उसको ज्यादा अच्छे तरीके से बेसिकली लाइक मार्केट में ला सकते हैं, और अपना जो एड्स है ना उसको बहुत ट्वर्की और बेसिकली लाइक बहुत फनी रख सकते हैं, जिससे लार्जर ऑडियंस को कनेक्ट होगा चीजें, राइट। तो क्या चल रहा है अभी मार्केट में, फॉग चल रहा है, तो दिस दैट द टैगलाइन विच दे केम अप विद, राइट। So these are some unique things which you can inculcate in your marketing to make your reach and customers you can make your customers at a larger margin, I would say. This is how things work overall. So अभी तक किसी को कोई डाउट है मोटा मोटी? भाई अभी तो जियो का मार्केट आई गेस डाउन है पूरा। हाँ अभी तो मार्केट डाउन है, अभी तो मार्केट डाउन है, पर वो तो अंबानी है भाई, वो फिर पैसा कमा देगा, फिर पैसा बढ़ा देगा, और हम लोग के पास जिसके पास जितना कम खर्चा हो वो ऑलवेज विल गो फॉर दैट प्लान, राइट। सो वो अंबानी है, ही इज द रिचेस्ट पर्सन, सो वो ठीक अपना मार्केटिंग कर ही लेगा एट द एंड ऑफ द डे। एंड फिर दूसरा बात भी है ना, कितना जो नहीं बेसिकली लाइक बहुत जन को प्रॉब्लम हो रहा है, राइट। बट अगर तुम 4G मार्केट का देखेगा तो 5G मार्केट सॉरी 5G मार्केट में स्टिल जियो इज वन ऑफ द चीपेस्ट, राइट। 4G मार्केट में भी BSNL आ गया है, 4G मार्केट में BSNL आया, BSNL इज प्रोवाइडिंग अ चीप रेट, पर उसका भी सब जगह अवेलेबिलिटी नहीं है। तो जियो का जो मार्केटिंग है वो इतना स्ट्रांग है कि तुम चाह के भी ना तुम स्विच कर नहीं पाएगा। तुमको दिख रहा है कि प्राइस बढ़ रहा है, बहुत प्रॉब्लम होगा मेरे को, पर तुम्हारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस को उसने पहले ही एलिमिनेट कर दिया। सब्स्टिट्यूट ऑप्शन नहीं है। यस यस करेक्ट करेक्ट। Yeah, Arvo has raised hand. Dada, can you talk more about the search engine optimization and আরেকটা জিনিস যে প্রাইসিং স্ট্র্যাটেজি নিয়ে তুমি বললে কি লাইক কি ইকোনমিজ অফ স্কেলের যে কনসেপ্ট হয় ক্যান বি অলসো ইনক্লুড ইন দ্যাট থিং কি লাইক yes 100% you are selling something for a dirt cheap price, but since you are selling it for a dirt cheap price and in a market like India যেখানে পপুলেশন মানে অনেক বেশি আছে, you can reach out to a very large number of customers. 100%. Definitely it will work. And coming to search engine optimization, I would say search engine optimization is a very dense topic. तो इसके ऊपर ना हम लोग एक और सेशन करेंगे, तब इसके ऊपर थोड़ा डेप्थ में बात करेंगे, क्योंकि अभी इसके ऊपर अगर डेप्थ में बात करने चला गया तो इसके अपकमिंग भी बहुत सारे स्लाइड्स आ रहे हैं, तो वी विल लूज आउट ऑन दोस पॉइंट्स, ठीक है। तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड हम लोग एक सेशन करेंगे, ठीक है। आई विल कीप दिस इन पॉइंट, एंड देवब्रतो या हर्षांकित प्लीज नोट इट कि अपकमिंग सेशंस में एक सेशन हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे जरूर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अच्छा सॉरी, सेल्स फानेल ऑप्टिमाइजेशन ওইটাই ছিল না আই থিংক না, সেলস ফানেল অপটিমাইজেশন হচ্ছে, সেলস ফানেল অপটিমাইজেশন ইজ বেসিক্যালি তোমার যে সেলের যে চ্যানেলটা আছে, ঠিক আছে, তোমার বেসিক্যালি তোমার ম্যানুফ্যাকচারিং থেকে তোমার কাস্টমার অবধি জিনিসটা কিভাবে পৌঁছাচ্ছে, রাইট। সেই পৌঁছানোর ওয়েটা কি, কেউ বেসিক্যালি ম্যানুফ্যাকচার করে ডাইরেক্ট ই কমার্সে লিস্ট করে দিচ্ছে, আবার কেউ ম্যানুফ্যাকচার করে বেসিক্যালি ওটাকে ই কমার্সে লিস্ট করতে পারছে না, ওকে দোকানেই বেচতে হবে। सपोज बेसिकली अगेन इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ लिक्वर्स, राइट। तुम बेसिकली लिक्वर्स, अगर तुम कोई भी बेसिकली लिक्वर ब्रांड करोगे
तो उनको मैन्युफैक्चर करके वो फ्लिपकार्ट में अपना लिक्विड ब्रांड नहीं बेच सकता, क्योंकि देयर आर रेगुलेशंस जहां पे वो उसको नहीं कर सकता। तो उसको दुकानों में एफएल शॉप्स में ही उसको जाके बेसिकली उसको लिस्ट करना पड़ेगा। तो दैट इज हाउ फनेलिंग वर्क्स, राइट। बट अभी तो बेसिकली स्विगी भी घर बैठे बैठे बेसिकली लिक्वर कर रहा है, राइट। सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। तुमको उसको उस हिसाब से ऑप्टिमाइज करना है, फाइंडिंग द लूप होल्स, फाइंडिंग द टैक्टिक्स, जिस हिसाब से तुम उसको बेंड करके यूज कर सकता है। আচ্ছা, Getting it? হায়ারার্কি মানে ওই যে ম্যানুফ্যাকচার, হোলসেল, রিটেল, মানে এই Yeah, হায়ারার্কিতে correct. কোথায় কোথায় উই ক্যান সেভ মানি, Yeah, ওই correct, জিনিসটা, correct, ওই ব্যাপারটা। correct. अच्छा, कमिंग टू द नेक्स्ट लाइफ नाउ। अब हम लोग तो भाई आइडिया बहुत तोड़ आइडिया निकाल लिए एकदम, मतलब बहुत यूनिक आइडिया है। पर हम लोग तो कोई एनजीओ है नहीं कि सोशल सर्विस करते करेंगे, क्योंकि उससे तो अपना पेट भरेगा नहीं। वी कांट अर्न आवर ब्रेड बाय ओनली डूइंग सोशल सर्विस। तो पैसा बनाना है, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब पैसे बनाने का ना दो मेन चीज है, लाइक वी नीड टू अंडरस्टैंड टू मेजर थिंग्स। नंबर वन इज द रेवेन्यू मॉडल, और नंबर टू इज बेसिकली द रेवेन्यू स्ट्रीम्स। तो रेवेन्यू मॉडल और रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या है? तो revenue model is basically how your company is actually getting the or how they are basically putting forward the right. I am giving you few examples जिससे तुम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। पकड़ लो पकड़ लो फेसबुक, राइट। फेसबुक यूज करने के लिए तुमको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, बट फेसबुक इज वेरी रिच कंपनी, उसके पास लेकिन बहुत पैसा है। तो द बिजनेस मॉडल विच दे यूज इज कॉल्ड बेसिकली प्रीमियम प्लस एडसेंस रेवेन्यू, राइट। वो तुम्हारे लिए यूजर्स के लिए चीजों को फ्री रख रहा है, बट जो दूसरे बेसिकली बिजनेस है उनको बेसिकली पैसा देना पड़ रहा है अपना एड्स, अपना चीजें, अपना प्रोडक्ट्स को बेसिकली फेसबुक में लिस्ट करने के लिए, राइट। एंड दिस इज हाउ दे आर अर्निंग। बट हम लोग यूजर्स के लिए दे आर फ्री, राइट। और एक एग्जांपल अगर हम लोग लिए, ठीक है, देयर इज बेसिकली लाइक देयर आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट टू टेल। तुमको कोई प्रीमियम देके भी तुम यूज कर सकता है, राइट। पकड़ लो फिजिक्स वाला का ये सब माइक्रोसॉफ्ट। सब्सक्रिप्शंस। हेलो, हाँ माइक्रोसॉफ्ट। हाँ लेट मी एक्सप्लेन दैट पॉइंट भैया, अगर हाँ मैं खत्म कर लेता हूँ, फिर तू एक्सप्लेन करना। तो पकड़ ले एग्जांपल फिजिक्स वाला का ले लिया, तो यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्स है, अब बहुत सारा प्लेटफॉर्म जो कोर्सेज है उसको अनलिमिटेड टाइम के लिए, फुल और लाइफ टाइम के लिए अवेल करवा देते हैं। अब बहुत सारे लोग लाइफ टाइम के लिए अवेल नहीं करवाते। वो बोल रहे हैं कि तुमको नेक्स्ट ईयर का जनवरी या नेक्स्ट ईयर का फरवरी, जब तक तुम्हारा ज्वाइंट एग्जाम खत्म नहीं हो रहा तब तक तुम्हारे पास सब्सक्रिप्शन है। अगर उसके बाद तुमको फिर से चाहिए चीजें, तो यू नीड टू अगेन पे द मनी। तो दिस इज कॉल्ड प्रीमियम बेसिकली तुमको पे करके करके तुमको अपना रेवेन्यू मॉडल बनाना है। देयर आर अदर मॉडल्स ऑल्सो, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, पेपर यूज मॉडल होता है एक, कि तुमको हर एक बार जब भी तुमको एक बेसिकली कुछ खरीदना है या एक बार तुमको प्रोडक्ट यूज करना है, तुमको एक बार के लिए पे करना पड़ेगा, राइट। अब इसका एग्जांपल बेस्ट क्या है? उबर ले लो, ओला ले लो, ठीक है। तुमको एक राइड के लिए एक राइड का पैसा दे देना पड़ेगा, राइट। हर एक यूजेज के लिए तुमको हर एक टाइम पे करना पड़ेगा। तो जब तुम लोग अपना बिजनेस मॉडल बनाएगा, तो यू नीड टू स्ट्रक्चर योर रेवेन्यू मॉडल अकॉर्डिंग टू दैट, कि कौन सा मॉडल करेंगे कि जिस हिसाब से हम लोग को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। इसके हिसाब से तुम लोग कैसे इस चीज को देख सकता है? तुम लोग कंप्यूटर एनालिसिस जब करेगा तब देखेगा कि दूसरा कंप्यूटर्स कौन सा मॉडल के ऊपर ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। उस बेसिकली रेवेन्यू मॉडल में कोई लूपहोल्स है कि नहीं, अगर लूपहोल्स है तो हम लोग क्या इनोवेट कर सकते हैं, वो सब चीजें तुम लोग को ब्रेनस्टॉर्म करके निकालना पड़ेगा। बट दिस इज हाउ बेसिकली रेवेन्यू मॉडल ओवरऑल वर्क्स। कमिंग टू रेवेन्यू स्ट्रीम्स होता है कि जहां जहां से तुम अपना रेवेन्यू अर्न कर सकता है, राइट। सपोज मैंने फेसबुक का जब एग्जांपल लिया, तो एक होता था कि तुम्हारा पकड़ लो फेसबुक ले लो या इंस्टाग्राम ले लो, ठीक है। इंस्टाग्राम का एग्जांपल लूं तो इंस्टाग्राम में वो ब्लूटिक खरीदने के लिए ना, पहले तो बेसिकली वो सबको नहीं मिलता था, बट अभी उन्होंने सबको दे दिया कि तुम एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करोगे तो तुमको ब्लूटिक मिल जाएगा, राइट। तो बेसिकली ये जो चीज है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुमको वो ब्लूटिक जो खरीदेगा उससे तुमको पैसा जनरेट हो रहा है, राइट। तुम्हारे जो एड्स रन हो रहे हैं उससे तुमको पैसा मिल रहा है। फिर तुमको अगर बेसिकली अपना पर्टिकुलर पिक्चर या अपना पोस्ट को ज्यादा रीच करना है, ज्यादा रीच आउट करवाना है, फिर उसके लिए भी तुम बेसिकली पे कर सकता है, जिससे तुम्हारा रीच बढ़ेगा। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज फ्रॉम विच यू कैन अर्न मनी। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वेज है, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स, एंड जिसको ही हम लोग बेसिकली सम अप करके बोलते हैं रेवेन्यू स्ट्रीम्स। एक कंपनी के लिए बहुत ज्यादा रेवेन्यू स्ट्रीम्स होना भी थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि जितना ज्यादा तुम्हारा रेवेन्यू स्ट्रीम्स होगा उतना ज्यादा तुमको मुश्किल होगा चीजों को मैनेज करना। पर एक या दो रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी जनरली मैंने दे डेफिनेटली वर्क, अगर बहुत अच्छा तुम्हारा रेवेन्यू स्ट्रीम है तो। नहीं तो बेसिकली इन जनरल एक से ज्यादा रेवेन्यू स्ट्रीम जनरली होना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं तुम्हारा एक रेवेन्यू स्ट्रीम कहीं पे लटक गया, कहीं पे तुम्हारा उसमें लेके प्रॉब्लम हो गया, तो दूसरा रेवेन्यू स्ट्रीम से तुम कहीं ना कहीं अर्न कर पाएगा।
So this is something which you can basically definitely think about while you are designing your revenue model and basically revenue structure. हाँ, अब हर्षांकित बोल, तेरे को कुछ एक्सप्लेन करना है तो? यस भैया, उस वक्त बोल रहे थे कि रेवेन्यू मॉडल्स के लिए 2 एग्जांपल्स था। लाइक वी कैन गो विद उबर शटल। उबर शटल में क्या सीन है कि फर्स्ट 10 राइड्स फ्री है। आई होप सो सब ट्राई तो किया ही होगा एक बार के लिए। फिर से उसके बाद अगर आप फर्स्ट 4 राइड्स या 10 राइड्स है, आई डोंट नो राइट नाउ, बट जो है उसका है कि यू कैन यूज दैट एंड आफ्टर दैट उसके बाद तुम पे करना स्टार्ट कर दोगे, पहला चीज। दूसरा, हाँ, फर्स्ट 5 राइड्स ठीक है। एक और एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट का, विच आई वाज गोइंग टू गिव, दैट सब कोई तो अभी पायरेटेड ही यूज कर रहा है ना, हाँ या ना? हेलो, सब कोई ये विंडोज होगा वो पायरेटेड यूज कर रहा है ना, हाँ या ना? मैक्सिमम मेजोरिटी यूज कर रहा है, आई गेस मेजोरिटी बेसिकली पायरेटेड यूज करता है क्योंकि कभी गेस, माइक्रोसॉफ्ट का सर्विसेज दे आर हाँ कॉस्टली। हाँ ठीक है। सो कभी कोई गेस किया है तो वो कैसे अर्न कर रहा है भैया? कोई भी? एनीवन? हाँ, if I remember there was this thing saying कि अगर pirated भी यूज करेगा तो भी मेरा यूज करेगा। মাইক্রোসফটের অমনি একটা ব্যাপার ছিল। another thing is क्या मेरा यूज স্টুডেন্টস करेगा? আমরা তো লাইক অ্যাফোর্ড করতে পারছি না, we can't afford it now, but the thing is since we are accustomed to Microsoft using Microsoft, তো যখন আমরা একটা কোম্পানিতে ঢুকবো, that company has to buy Microsoft Windows, Microsoft softwares, because ওরা তো pirated यूज करते পারবে না, they have regulations। एक सेकंड, एक मिनट। आई एम टॉकिंग, ठीक है, वो ठीक है, एक पॉइंट है, बट दैट इज नॉट द मेजर पॉइंट राइट नाउ, क्योंकि वो ज्यादा केटर नहीं कर रहा है। कंपनीज कितना केटर कर रहा है? मैक्सिमम, सबसे ज्यादा। उसके लिए तो ठीक है, बट मैक्सिमम तो वो पायरेटेड ही से कमा रहा है ना। वो कैसे कमा रहा है? कोई कभी सोचा है? ये चीज बताओ। और ये हम बता रहे हैं 90s के टाइम का। 90s के टाइम भी विंडोज माइक्रोसॉफ्ट जो था वो कमा रहा था अपना ओएस के थ्रू। कैसे? कोई सोचा? एनी गेसेस? हेलो, एम आई ऑडिबल customer गाइस? acquisition, customer हाँ acquisition ना, মানে someone just is getting so much used to using Windows कि এখনো switch করবে না to another software। हाँ ठीक है, दैट्स ट्रू, क्वेश्चन बट क्वेश्चन वो मुझे पैसा नहीं पता। कैसे कमा रहा था? नहीं, हम बोल रहे हैं कि सब कोई तो पायरेसी के थ्रू सब कोई विंडोज यूज कर रहा था, ठीक है। 90s के टाइम भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो होता है ओएस यूज कर रहा था, ठीक है। बट फिर भी वो लोग कैसे प्रॉफिटेबल था 90s के टाइम? माइक्रोसॉफ्ट का बात कर रहे हैं यहाँ। आई गेस हर्षांकित यू नीड टू आंसर देम। यस, सो वो लोग बेसिकली क्या है, कंपनी से डील हाँ, करते हैं क्या? नहीं नहीं, अब बता रहे हैं। द आंसर इज दैट कि कभी भी तुम देखना कि एक वो लोग का होता है कि रेस्ट्रिक्शंस, लाइक अगर तुम विंडोज यूज कर रहे हो तो उसमें होता है कि एक सर्टेन कंपोनेंट्स ही यूज कर सकते हो तुम, उसके बाहर तुम यूज नहीं कर सकते हो। सो राइट नाउ इनका रेवेन्यू मॉडल क्या था? देवर पार्टनर डूइंग पार्टनरशिप विद अदर कंपनीज की सिर्फ उन्हीं के कंपोनेंट्स यूज होंगे जिसके लिए वो चार्ज करते थे, ठीक है। इसी के लिए वो प्रॉफिटेबल था। और थोड़ा लाइक इसको और अगर मैं एक्सप्लेन करूं, लाइक तुझे नाउअडेज वी पीपल प्ले गेम्स राइट, बट हाउ मेनी कैन ऑफ अस कैन बेसिकली अफोर्ड अ प्ले स्टेशन? वेरी फ्यू ऑफ अस राइट। पर जो गेम डेवलपर्स है उनको तो भाई पैसा कमाना है, वो तो अगर सब बेसिकली लाइक प्ले स्टेशन अफोर्ड नहीं कर सकता तो उन लोग को तो बेसिकली अपना पैसा बनाना है ना। तो दे हैव टू बेसिकली डेवलप द बेसिकली गेम ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ विंडोज राइट। अब तुम विंडोज के लिए पे नहीं कर रहा है, पर कितना तुमको वो गेम खरीदने के लिए इनिशियली, फिर आफ्टर टाइम दैट गेम आल्सो बिकम्स पायरेटेड या सॉफ्टवेयर आल्सो बिकम्स पायरेटेड, बट इनिशियली उसको मार्केट में जब वो आ रहा है राइट, तब बेसिकली तो उसको यही तो मैक्सिमम यूजर्स आर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट राइट, या और विंडोज यूज कर रहा है, तो उसको अपना बेसिकली सपोर्ट या अपना बेसिकली जो ऐप ये उनका गेम या सॉफ्टवेयर कुछ भी है उनको माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर ही बनाना पड़ रहा है या विंडोज के ऊपर ही बनाना पड़ रहा है। अब वो बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट इज आस्किंग प्राइस फॉर देम और उसको उसके लिए चार्ज कर रहा है। सो उसका बेसिकली हम लोग को लग रहा है कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का मेजर बेसिकली यूजर्स या लाइक कस्टमर्स है, बट इनडायरेक्टली हम लोग कस्टमर्स है, पर उनका जो डिफरेंट अदर बिजनेसेस है वो भी उसका कस्टमर्स है राइट।
दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट बेसिकली कस्टमर एक्विजिशन, जहां पे तुम डायरेक्टली कोई कस्टमर को एक्विजिट नहीं कर रहा है, पर तुम उसको फोर्स कर रहा है कि वो तुम्हारा कस्टमर बन जाए, क्योंकि बाकी उसका जो कस्टमर्स है दूसरा बिजनेसेस का, दे आर बेसिकली योर कस्टमर्स. हाँ, समवट B2B मॉडल, करेक्ट. ओके, देन कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? अगर हर्षांकित बोलना है कुछ तेरे को? नहीं भैया, और कुछ नहीं, वही था एक पॉइंट चलो. जो सबसे. चलो फिर नेक्स्ट में हम लोग जाएंगे. नेक्स्ट हम लोग का है प्रोजेक्टेड रेवेन्यू. अच्छा, ये चीज जो है, दिस इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग टू हैव इन योर बेसिकली बिजनेस प्लान, राइट? पर अगर प्रोजेक्टेड रेवेन्यू तुम अपना बिजनेस प्लान में बना रहा है या मेंशन कर रहा है, देन यू नीड टू बी वेरी थॉरो अबाउट इट. अब ये क्या होता है, इसमें क्या कर सकते हैं, राइट? तो इसमें ना दो कंपोनेंट्स होता है, आइदर ऑफ द टू यू कैन इंप्लीमेंट और यू कैन इंप्लीमेंट बोथ ऑल्सो, राइट? पर अगर कर रहा है तो बहुत ढंग से करना पड़ता है. इसमें क्या होता है कि अगर तुम लोग को सपोज तुम लोग के पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फंडिंग है, राइट? कि तुम लोग पे अभी पकड़ लो 1 लाख रुपया का फंडिंग है या 2 लाख रुपया का फंडिंग है, या तुम लोग ने बिजनेस जस्ट स्टार्ट किया है, तो विद इन 5 ईयर तुम्हारा कंपनी कैसे ग्रो करेगा, कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, उसके हिसाब में तुम्हारा प्रॉफिट कितना होगा, तुम्हारा बर्न कितना होगा, उसका बेसिकली एक चार्ट बेसिकली शो करना पड़ता है. आइदर यू कैन डू दैट और यू कैन डू अ रेवेन्यू ब्रेकडाउन which can also be merged with unit economics, जहां पे तुम्हारा एक प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या आ रहा है, राइट? रेवेन्यू प्रेडिक्शन, यस, रेवेन्यू प्रेडिक्शन समवट, यस, एंड दैट शुड बी, एंड ऐसे बेसलेस नहीं करना सकता, यू नीड टू जस्टिफाई इट, बिकॉज अगर रेवेन्यू तुम बना रहा है प्रोजेक्टेड रेवेन्यू, देन जब तुम लोग पिच करेगा, जो जजेस रहेंगे वो रेवेन्यू मॉडल पे क्वेश्चन करेंगे, रेवेन्यू प्रोजेक्टेड रेवेन्यू में 100% क्वेश्चन करेंगे. सो यू नीड टू बी वेरी थॉरो एंड नीड टू जस्टिफाई इट. अगर मैं कहीं पे दिखा रहा हूं कि मेरा सेल्स 1 करोड़ जा रहा है, then you need to thoroughly justify it कि कैसे तुम वो 1 करोड़ अचीव कर रहा है, राइट? You need to be very thorough about it. और अगर तुम पकड़ लो चार्ट नहीं करना चाहता, तुम बेसिकली सिर्फ 1 साल का अपना रेवेन्यू तोड़ के दिखाना चाहता है, then you can merge it with unit economics, जहां पे एक प्रोडक्ट बनाने से लेके उसको बेचने तक का बेसिकली सफर में तुम्हारा कितना खर्चा हो रहा है और तुम्हारा कितना बेसिकली लाइक तुम्हारा प्रॉफिट बच रहा है. जैसे रेवेन्यू ब्रेकडाउन में जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किया कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या है, प्रोडक्शन का कॉस्ट क्या है, मेंटेनेंस का कॉस्ट क्या है, प्रोडक्ट का सेल क्या है, प्रॉफिट पर यूनिट कितना है, ठीक है? ये सब बेसिकली तुमको फंडामेंटल्स थोड़ा देखना पड़ेगा, राइट? सो दीज आर द मोर और लेस द रेवेन्यू प्रेडिक्शंस, जहां जो तुम लोग अपना पीपीटी में इंक्लूड कर सकता है. बट आई वुड अगेन से दिस इज नॉट अ वेरी मैंडेटरी थिंग टू कीप. अगर कर रहे हो तो बहुत ढंग से करना. नेक्स्ट थिंग इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और ये अपना बिजनेस पीपीटी में तुम लोग को जरूर से रखना है, दैट इज योर प्रोग्रेस एंड ट्रैक्शन. इसको हम लोग बेसिकली ग्रोथ एंड टाइमलाइन भी बहुत समय में बोलते हैं. इसमें क्या क्या चीजें रहते हैं, इसमें जैसे तुम्हारा फ्यूचर में तुम्हारा क्या क्या माइलस्टोन्स है, राइट? तुम अगले 4 साल में तुम क्या क्या अचीव करना चाहता है, ठीक है? तुम्हारा प्रोडक्ट को लेके तुम क्या क्या लॉन्च करना चाहता है, क्या नया प्रोडक्ट बेसिकली लॉन्च करना चाहता है, क्या नया मार्केट में तुम घुसना, नया ज्योग्राफिक लोकेशंस पे तुम अपना ऑफरिंग्स बेसिकली लाना चाहता है, तुम कितना फंड रेज करना चाहता है, तुम क्या क्या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना चाहता है. दिस ऑल कम्स अंडर योर फ्यूचर माइलस्टोन्स. नाउ कमिंग टू का बात तो हो गया, बट पास्ट से प्रेजेंट तक में तुमने क्या क्या अचीव किया है, तुमने अपना प्रोडक्ट को डेवलप कितना किया है, अपना प्रोडक्ट कितना अच्छे से डेवलप किया है, जो एमवीपी है, जो मोस्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट है तुम्हारा, उसको तुमने कैसे लॉन्च किया है, या कैसे लॉन्च, कितना तुम्हारा उससे कितना प्रॉफिट आ रहा है, राइट? तुमने कितना की पार्टनरशिप्स या लाइक कोलैबोरेशंस बनाया है, राइट, विद डिफरेंट अदर बिजनेसेस और कस्टमर्स, राइट? तो तुम्हारा ये सब चीजें तुम्हारा मेजर अचीवमेंट्स में आ रहा है, ठीक है? या अब कहते हैं मार्केट ट्रैक्शन. ये क्या होता है? मार्केट ट्रैक्शन होता है तुम मार्केट में कितना जन को बेसिकली अपना प्रोडक्ट के तरफ अट्रैक्ट कर पाया, तुम्हारा नंबर ऑफ यूजर्स और कस्टमर्स जो तुम्हारा बेसिकली प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं, तुम्हारा रेवेन्यू का जो ग्रोथ हो रहा है. बिकॉज आज मेरे पास अगर 10 कस्टमर्स हैं और अगले साल अगर मेरे पास 8 कस्टमर्स है, देन बेसिकली वी आर लूजिंग आउट ऑन कस्टमर्स, ठीक है? तो तुम्हारा रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हो रहा है, तुम्हारा बेसिकली रेवेन्यू नीचे जा रहा है. पर अगर मैंने 12 कस्टमर्स एक्वायर कर लिया तो मेरा 2 कस्टमर्स तो बढ़ा, तो दैट्स हाउ बेसिकली तुम्हारा 2 कस्टमर्स के साथ तुम्हारा रेवेन्यू भी थोड़ा बढ़ेगा, तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा ग्रो करेगा. दीज आर मार्केट ट्रैक्शंस, राइट? एंड अब इसके ऊपर ना टेस्टिमोनियल्स और केस स्टडीज डेमोन्स्ट्रेटिंग द इम्पैक्ट, तुम इसके ऊपर अपना बेसिकली लाइक प्रॉपर केस स्टडी कर सकता है कि तुम्हारा लाइक मार्केट को तुमने कैसे तोड़ा है, तुमने कैसे बेसिकली कस्टमर्स को एक्वायर किया है, तुमने उनका नीड्स को कैसे समझा है. यू कैन डू दिस विद मल्टीपल कस्टमर सर्वेज, तुम सर्वेज करा सकता है,
फ्री में अपना प्रोडक्ट बेसिकली अवेल करवा के उनसे फीडबैक ले सकता है, और जो कि हम लोग दुर्गा पूजा के समय में बहुत समय देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिकली शॉप, मतलब छोटा छोटा बेसिकली लाइक आउटलेट्स रखवा देते हैं, फ्री में बेसिकली कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट उनका देते हैं। पकड़ लो कोई डीओ का एक छोटा सा चीज दे दिया, ठीक है, एंड फिर आफ्टर यूजेज बेसिकली यू दे टेक अ बेसिकली व्हाट टू टेल रिव्यू फ्रॉम यू, ठीक है, कि कैसा है क्या है, ये सब बेसिकली थिंग्स। तो these are the things which are necessary, right? And now the final important thing, what is break even point? ये एक बहुत टेक्निकल टर्म है। पकड़ लो आज तुम्हारा कंपनी तुमने स्टार्ट किया, राइट? तुमने आज कंपनी स्टार्ट किया, तुम्हारा कंपनी का सेल्स है अराउंड 1 करोड़ रुपीस और तुम्हारा कंपनी का बर्न है अराउंड 1.5 करोड़ रुपीस। तो यू आर नॉट प्रॉफिटेबल बट योर बिजनेस इज रियली गुड, राइट? तुमने 1 करोड़ का प्रॉफिट किया, तो 1 करोड़ का सेल्स किया, देन इट्स अ वेरी कमेंडेबल बिजनेस, राइट? अब अगला साल जब तुम करेगा तो अगला साल तुम्हारा ये जो तुम्हारा जो गैप है, तुम्हारा जो नंबर ऑफ लॉस है, ये तुम्हारा कमेगा या बढ़ेगा, इसके ऊपर एक टाइम में जाके एक चीज होगा कि तुम्हारा जितना सेल्स हो रहा है और तुम्हारा जितना बर्न हो रहा है वो इक्वल हो जाएगा, राइट? नाइदर यू विल बी हैविंग अ प्रॉफिट नॉर यू विल हैविंग अ लॉस, यू विल कंप्लीटली एट द सेम पोजीशन, एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट। तो तुम्हारा जब मार्केट ट्रैक्शन तुम मेंशन करेगा तो तुम लोग को बेसिकली मेंशन करना होगा कि अगले 5 साल या 6 साल या 7 साल में तुम लोग कब जाके बेसिकली अपना ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव कर सकता है। So that's a basically prediction which you can also make, and that can definitely add some important marks or points to your basically overall presentation. अच्छा, एक चीज sorry, हाँ, एक चीज, there are some doubts. Dada, can you explain the things like revenue, profit after tax, EBITDA? हाँ, ये सब कर सकते हैं explain, but बेटा अगर मतलब भाई अगर तुम ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके पहले you need to understand the things कि तुमको पहले अगर ये सब चीज क्या तुमको पहले अपना प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, राइट? वंस यू फर्स्ट द थिंग इज बेसिकली यू नीड टू टेक योर स्टेप्स, राइट? स्टेपिंग स्टोन्स लेना पड़ेगा। फर्स्ट अपना प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है, उसके ऊपर बेसिकली काम करो, फिर जाके ये एबिटा बोलो या लाइक वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलो, राइट? ये सब टॉपिक्स फिर बाद में आएगा, पहले सेल्स तो करना पड़ेगा ना, फिर ना तुम्हारा प्रॉफिट आएगा, तो उसके पहले सेल्स करने से पहले प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो दीज आर सम एडवांस टॉपिक्स जो कि हम लोग इन फ्यूचर में बेसिकली डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, बट इनिशियली एज अ ग्राउंड लेवल तुम लोग का बिजनेस प्लान में ये सब अभी तक नेसेसरी नहीं रहेगा। Abhimanyu भैया, हाँ sorry for the interruption, but we are little bit delayed to our हाँ, track. तो डिलेड, करेक्ट, वी आर लिटिल बिट डिलेड। एंड लास्ट स्लाइड जो तुम लोग का रहेगा दैट विल बी योर टीम एंड थैंक यू। अपना टीम को मेंशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अपना टीम में कौन कौन बेसिकली क्या क्या पोजीशन होल्ड्स कर रहा है दैट यू नीड टू मेंशन, कि कोई मार्केटिंग में काम कर रहा है, कोई फाइनेंस में काम कर रहा है, तो कौन कौन सा बेसिकली पोजीशन पे काम कर रहा है, Timeline. दैट पोजीशन नीड टू बी मेंशन्ड। एंड वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर कि जब तुम लोग बिजनेस पीपीटी करेगा, बिकॉज तुम लोग का अभी तक स्टार्टअप पूरी बना नहीं है, तो नेवर यूज टर्म्स लाइक सीटीओ सीईओ, ठीक है? क्योंकि जब तुम्हारा बिजनेस प्रॉपरली रन करेगा फिर जाके सीटीओ सीईओ बनेगा। अभी यू कैन वर्क ऑन बेसिकली एग्जीक्यूशन और ऑपरेशंस। पकड़ लो जो सीईओ है, ठीक है, जो चीफ ऑफ ऑपरेशंस ऑफिसर, राइट? सो वो ऑपरेशंस के ऊपर काम करता है। तो नाउ तुम लोग का कंपनी अभी तक पूरा बना नहीं है, सो डोंट बेसिकली मेंशन सीईओ, राइट? यू कैन राइट दैट यू आर बेसिकली यू हैव वर्कड ऑन ऑपरेशंस। तो दिस आर सम, कोई लिख दिया सीटीओ, सो तुम्हारा कंपनी बना नहीं है कि यू आर कॉलिंग योरसेल्फ द चीफ टेक्निकल ऑफिसर। यू कैन राइट दैट यू हैव वर्कड ऑन बेसिकली टेक्नोलॉजीज, राइट? So these are few things we need to keep in mind, and if we are all good by this time, then is there any more doubts you guys want to ask us? Any more doubts? আমার একটা ডাউট ছিল, যে ব্রেক ইভেন পয়েন্টে নিয়ে তুমি ডিসকাস করলে, ইজ দ্যাট সাপোজ টু বি আ গুড থিং অর আ ব্যাড থিং ফর দ্য কোম্পানি? ডিপেন্ড করছে, দেখ সাপোজ বেসিক্যালি ইউ আর গ্রোয়িং, ঠিক আছে, তোর গ্রোথটা খুব ভালোই হচ্ছে, হয়তো তুই প্রফিট এখন অব্দি আনতে পারিসনি, বাট ইউর গ্রোথ ইজ ভেরি গুড, রাইট? বিকজ এখন লেটস টক অ্যাবাউট পেটিএম অনলি, ঠিক আছে? পেটিএম ইজ নট আ প্রফিটেবল, পেটিএম ইজ স্টিল নট प्रॉफिटेबल, बट दे हैव अ गुड ग्रोथ, राइट? इवन लेंसकार्ट जो कंपनी है दैट बिकेम प्रॉफिटेबल आफ्टर 10 years फ्रॉम देयर लॉन्च, राइट? तो पीपल टेक टाइम, बट इफ दे आर हैविंग अ कांस्टेंट ग्रोथ in between these years while they are achieving their break even points, then it's good, then you can basically, but to jodi basically growth to hoche na, and the difference between your basically your sales and the amount of money you are burning, wo agar every year thoda बढ़ता ही रहा, right, और तुम्हारा growth भी उतना ज्यादा नहीं हो रहा है, then I would say the break even point can be a negative factor for you. মেনলি তো ব্রেক ইভেন পয়েন্ট মানে ওটা তো হচ্ছে the business is survive in the tough condition, তাই না? I tough guess conditions, and একটা টাইম পর কখন গিয়ে তোমার বেসিক্যালি বিজনেসটা প্রফিটেবল হবে, রাইট?
হয়নি বাট কখন হবে ওই কখনো এক্সাক্ট হবে পয়েন্টটাকে হবে আমরা হ্যাঁ ব্রেক পয়েন্টটা বলতে পারি। it means year by year our losses should be decreased and our profit should be increased. আমাদের Yes, এক্সপেন্স আর সেলস, রেভিনিউ আর এক্সপেন্স ইকুয়াল হচ্ছে কিনা ওটাই দেখার, তুই বার্নলি correct. নিই তো এটা। अच्छा, आई गेस इज देयर, अगर कोई डाउट्स नहीं है तो आई गेस इज द टीम ऑफ सीक्रेट शेफ प्रेजेंट हियर, गिव मी अ हैंड्स अप। और सीक्रेट शेफ का हाँ दिगंत दिगंत तो আছে। अच्छा फॉर गाइस, लाइक तुम लोगों के लिए मैंने हम लोग ने एक चीज अरेंज भी किया है कि तुम लोग को अभी तक हम लोग ने बहुत कुछ समझाया रिगार्डिंग अ बिजनेस प्लान, बट एक्चुअली एक बिजनेस प्लान कैसे रन करता है दैट अ डेमोन्स्ट्रेशन विल बी गिवन टू यू बाय द लाइक बाय द टीम ऑफ सीक्रेट शेफ। आई वुड से सीक्रेट शेफ इज अ बेसिकली स्टार्टअप जो कि तुम लोग का ही बेसिकली सीनियर्स ने बनाया है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स है यहाँ पे, एंड उन्होंने ही बनाया, एंड इट इज रनिंग सक्सेसफुली एंड वंडरफुली इन आवर कॉलेज। कॉलेज के जितना भी इवेंट्स होते हैं उसमें मैक्सिमम फूड का बेसिकली पूरा डिपार्टमेंट सीक्रेट शेफ ही जनरली हैंडल करता है। एंड सो दे विल गिव यू अ बिजनेस प्लान बेसिकली प्रेजेंटेशन कि जिससे तुमको समझ में आएगा कि जो जो पॉइंट्स हम लोग ने तुमको बोला है उसको ऑन पेपर कैसे अवॉइड करना, उसको ऑन पेपर कैसे रखना पड़ता है, सो दैट यू विल गेट टू अंडरस्टैंड। सो दिगंतो, ओवर टू यू। Yes, Bhaiya, thank you. Let me just share the PPT. Can you all see it? Yes, we are. Okay. So as Bhaiya said, Diganto, I am present going to. that screen properly. Huh? Present that screen properly. Yeah, I'm Because- presenting. फुल स्क्रीन कर देना, फुल स्क्रीन कर देना। हाँ, ठीक है सेपट? हाँ ठीक है। Okay. So as Bhaiya said, I am going to show you the PPT of Secret Chef. We were the finalist of last year's Hall Prize. And so you will see a real PPT. Till now, what you saw was like a model one, a template one. Now you will see a real PPT and how to organize all those things that was taught till now inside one PPT of your company or your startup that you are going to plan. Okay, so at the start, you can see the first page, the logo and the name. So there was a lot of discussion about the logo, how it should be, how the name should be. The name should be catchy and should interpret what your business is all about. So I'll explain you how this name interprets more. And as you can see, the logo and the name, it's quite catchy. You have to give such catchy names so that it helps to give you a boost in the marketing. So nextly, there will be a tagline that will tell your what your company is about. You will see all the companies mostly has a tagline. So the tagline will be just one sentence or two sentences. In short, you have to describe about your company. You have to be crisp and innovative with it, and so that people will also like to hear that your taglines. So you can see that we have a tagline here: savor the secret, embrace the flavor, your culinary journey begins here. So that was our tagline for the Secret Chef. Now, coming to the point, what problems are we going to address and what will be the solution for that problems? So before starting, I'll tell you what are the problems. And let me also tell you that when you're presenting your PPT in Hult Prize or any other competition, it's not that just you will read through the lines of your PPT. हम यहाँ पर बोलने नहीं आए. We have to explain the PPT in our words. We will not just read through it. That would be very boring for the judges and the audience. You have to make your own interpretation of your PPT. So what was Secret Chef actually addressing? The Secret Chef wanted to address two problems. The first one, we know that in India, housewives are mostly in homes. They want to become financially independent, but they do not get the ideal platform or opportunity to become financially independent, because many housewives do not want to get out of their houses due to various reasons. And also, not to mention that there is a huge amount of gender inequality in India. So the first problem that we wanted to solve was to create some opportunity for income for the housewives. And as we all know, most housewives are good cooks. Most of our mothers are housewives, and our mothers are all good cooks. And secondly, on the other hand, students and busy professionals who mostly stay out of their homes, like you all mostly are staying in PGs, hostels, and busy professionals, those who are working in the corporate world, they have to stay outside their family. And you all know that we have to go out and eat all those junk foods, oily foods. We all crave for ghar ka khana.
So these were the two problems that we wanted to solve by connecting them. That is the how the homemaker or the housewife will be making the food, and we will have a delivery platform. Through that, we will be giving the food or delivering the food to the students or the busy professionals who wants that ghar ka khana. Now this can have various aspects, like you can go monthly, weekly, or daily, even daily basis. You want to eat some food, you can order through our platform. So this was the basic idea. So as I said, the problem statements, you can see that I have written the problem statements in detail, and with that problem statement, I have written the solutions of it, of that particular problem. I'm not going to read through the PPT. That's not how you present the PPT. Next, what is your action plan? How are you going to do the whole thing that I just said, that we will be having a platform